Welcome to the Horsemouth Podcast. It's my excuse to meet fascinating people and learn how they approach work, productivity, and problem solving. My guest today is the Deputy Director of Pench Tiger Reserve in Madhya Pradesh. He is a decorated IFS officer who has dedicated his life to the Forest Service for close to 3 decades. His exemplary work in conservation awareness and education, and the welfare of both the community and forest staff has made him one of the top-ranking custodians of our wildlife and natural habitat. A proud Indori, he started his career in the service in 1997. Although he has a degree in statistics, he is also blessed with a keen eye for storytelling, poetry, and design. As if that's not enough, he is also regarded as one of the country's leading experts in rescue operations as well as the mass capture and transportation of herbivore wildlife. This afternoon, however, I hope it doesn't take a rescue operation to save him from my annoying questions. Surrounded by the Pench wilderness today, I'll be doing my best to pick his brain on all things related to wildlife and its management. For better information on how you can support wildlife conservation, please visit mptigerfoundation.org and follow them on YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook. And now, please enjoy my conversation with Mr. Rajneesh Kumar Singh. Thank you, Shubhankar, for such a, great introduction. And I can see you have done your homework well because as a government official, we come across many occasions जब लोग हमारा interview लेते हैं, mostly journalists, and normally they talk something very topical. But you know what I did during my studies, where I am from. So as I was saying, it is overwhelming. I'm feeling great and I'm ready to take all your questions. So I think it's the personality that informs the questions. So I could not have done so much research if you hadn't done so much exemplary work. Thank you. Thanks again. You have gifted me this information that I'm now using. Thank you. So sir, before I get into the topics and all of that, I wanted to start off by telling you that being here with you is one of my dreams because when growing up, my family and everybody knows this, that I wanted to be a forest guide. Then someone informed me that, you can actually aim for IFS and all of that. You don't have to aim for being a guide. I know. But then when I finally figured out that उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, biology and बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, then I think वो थोड़ा trail off हो गया. But this is full circle moment for me because I'm with an IFS officer in the midst of wilderness, so it's a big privilege for me. And related to that, I wanted to ask you, sir, कि you've been in the jungle for 3 decades now, close to 3 decades. Almost like, yeah. What does it do to a man being in the nature for so long? It affects you hugely. It affects you hugely in all positive manner. So, मुझे याद है अपना जो initial year of my job, I was very aggressive. I was very loud. Still I am sometime. But धीरे धीरे आप टोन डाउन होते जाते हो. आपको लगता है कि हाउ स्मॉल यू आर एंड कैनवास कितना बड़ा है और वो एक आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है. आपने अभी जब व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन देन आई रियलाइज कि व्हाट आई वाज 30 इयर्स बिफोर एंड व्हाट आई एम टुडे देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस. कोर वैल्यूज वही है बट द वे आई अप्रोच टू अ प्रॉब्लम, द वे आई सी a problem and then how I try to resolve them, there's a huge difference and it's all because of the jungle and more than the jungle, the people around. So I was blessed that I got an opportunity to work in one of the 3 best managed PA in Madhya Pradesh and in India. So Kanha, Pench and a little very brief period in Satpura. So अभी इन तीनों की बड़ी जबरदस्त बातें हैं. यदि आप फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारे बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हुए हैं, चाहे डॉक्टर राजेश गोपाल हो, मिस्टर पवार हो, चौहान साहब हो, नेगी साहब हैं, मिस्टर डुंगरियाल हैं, सो बहुत लंबा लिस्ट है, मैं कितना नाम लूँ कुछ छूट ही जाएंगे. और दूसरे तरफ जो लोग हैं, जो यहाँ की कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के हमारे आज मेरे पास पेंच में लगभग 800 लोगों की टीम है. उन 800 लोगों में 700 लोग लोकल्स हैं, मोस्टली गोंड्स और इफ नॉट if they are not tribe, then non-tribes be, they are very humble, very grounded, very passionate about whatever task been assigned to them. तो जब आप उनको देखते हो ना तो सीखते हो and you try to initially you try to mimic them और धीरे धीरे आप उन जैसे ही हो जाते हो. तो yes, I am blessed, I am very happy. ये मेरा कोई बहुत चॉइस का जॉब नहीं था कि मैं कोई फॉरेस्ट ऑफिसर बनूं जैसा आपका ड्रीम था. मेरे लिए एक एक्सीडेंट था और बहुत खुशनुमा एक्सीडेंट भी नहीं था. कैसे? So हुआ ये
when I was pursuing my statistics, unfortunately by that time I was 20, I lost my father. और मेरी फैमिली में एक छोटी बहन है मेरी, शी इज डॉक्टर. तो उस समय उनका एडमिशन ही हुआ था मेडिकल में. शी वाज इन फर्स्ट ईयर, 1 महीना ही हुआ था उन्हें मेडिकल में गए हुए. तो हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो सराउंडिंग होता है, हर माँ चाहती है कि भाई मेरा बेटा तो आईएएस ही बनना चाहिए, आईएएस से कम में किसी भी चीज पे. गवर्नमेंट ऑफिसर? मेरे फादर भी पुलिस ऑफिसर थे. जब उनकी डेथ हुई तो वो सागर में पोस्टेड थे, एडिशनल एसपी थे. तो आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बट जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है ना, तो आप बहुत टेम्प्ट होते हो कि यू नीड टू अर्न. और वो जो मेरा अर्ज था, मुझे लगा कि मुझे जो भी जॉब पहले मिलेगी मुझे कर लेना चाहिए. और मुझे जो भी जॉब पहले मिली वो फॉरेस्ट की जॉब थी एज अ रेंज ऑफिसर. और मैं ट्रेनिंग में गया, बालाघाट में ट्रेनिंग होती थी. और 1 महीने में मुझे लगा कि इसी की तलाश थी, अब और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे. तो मैंने सारे मेरे दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते रहे. बट 1 महीना बालाघाट रहने के बाद और उस रेंजर्स ट्रेनिंग में रहने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे केवल फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट के लिए और इसी माहौल में काम करना है. एंड एज आई सेड अगेन, जो मेरे ऑफिसर्स थे, एक मिस्टर अनिल साहू मुझे याद आ रहे हैं, मिस्टर ओपी तिवारी और मिस्टर डुंगरियाल, ये 3 नाम मैं लेना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे चीजल करके मेरे अंदर के वो वाइल्ड लाइफर को निकालना शुरू करा. तो पहले बर्डिंग शुरू करी और फिर थोड़ा कुछ और ज्यादा, फिर थोड़ा कुछ और ज्यादा. तो वो एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट को मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी जॉब एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर लगी. आप टीक प्रोडक्शन में भी थे? मैं नहीं था एक्चुअली में. यदि हम एमपी की बात करें तो एमपी में हमारे कुछ 6, 7, 8 मेजर वर्टिकल्स हैं. तो जो सबसे प्रोमिनेंट है, वी कॉल देम टेरिटोरियल फॉरेस्ट. सो जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट होता है वो नॉर्मल जंगल होते हैं, जिनमें आप यदि टेरिटोरियल वर्टिकल में हो तो आपका काम प्रोटेक्शन करना होता है, जंगल का डेवलपमेंट करना होता है कि वो कैसे वो जंगल बेहतर हो सके. यदि वहाँ कुछ कम्युनिटीज हैं आप उनके लिए भी काम करते हो, यदि वाइल्ड लाइफ है तो उनके लिए भी काम करते हो. फिर एक दूसरा मेजर वर्टिकल वाइल्ड लाइफ है, फिर एक सोशल फॉरेस्ट्री है, एक प्रोडक्शन है. तो ये हमारे सारे वर्टिकल है. मैं इनमें रहा हूँ. ट्रेनिंग स्कूल हमारा एक वर्टिकल है, वर्किंग प्लान है. बट टीक प्रोडक्शन जैसा हमारे यहाँ कोई वर्टिकल नहीं है. सो प्रोडक्शन एज वी कॉल इट, यस मैं उसमें भी रहा हूँ. बट मेरी तो जो मंजिल थी वो वाइल्ड लाइफ थी. थोड़ा थोड़ा समय लगा. 2002-03 में मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में गया, वहां पे ट्रेनिंग के लिए देहरादून में सर्टिफिकेट कोर्स करा. अगेन आई वाज वेरी ब्लेस्ड. वहाँ फैकल्टी एजिटे जॉन सिंह, डॉक्टर शंकर, डॉक्टर विवाश पांडव, बेहतरीन लोग. और लगा कि हाँ बस मैं थोड़ा सा पास पहुंच गया हूँ. बट फिर मेरी पोस्टिंग कुछ इधर रही, नरसिंहपुर में रही. बट देन 2006 में मेरी पहली पोस्टिंग एज अ वाइल्ड लाइफ रेंजर यहीं पेंच टाइगर रिजर्व में हुई. और तब से मैं 2006 से अब 2024 है तो कुछ 18 साल हो गए. आई एम कंटिन्यूअसली विद द वाइल्ड लाइफ विंग एंड इट इज वेरी फुलफिलिंग, वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. और ये जन्म और कितने और जन्म बस यहीं चाहिए और कहीं नहीं चाहिए. आई थिंक आपकी लाइफ की जर्नी में हम चले गए तो फिर हम काफी देर तक इसमें चर्चा करते रहेंगे. yes. थोड़ा सा आते हैं फॉरेस्ट के ऊपर. पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन की. ठीक है. जो 2 काम है, एक है प्रोटेक्शन और एक है कम्युनिटी, जो 2 आपके मेजर पार्ट्स हैं आपके जॉब के. पहले प्रोटेक्शन पे आते हैं. सर मुझे थोड़ा सा जानना था कि 111 बीट्स हैं पेंच में. मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि 111 बीट्स है, पर ये बीट्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं? मुझे जर्नलिस्टिक बीट्स पता है जो हम कॉलेज में पढ़ते थे. पर बीट्स क्या होती हैं, आप इनकी पेट्रोलिंग कैसे करते हैं? और आपने बताया कि एक साइंटिफिक अप्रोच है टू पेट्रोलिंग. या दैट्स राइट. सो यदि हम फॉरेस्ट को हम और बीट के भी और छोटी यूनिट पे जाएं तो आई थिंक हमारी सबसे जो छोटी मैनेजमेंट यूनिट है, वी कॉल देम कंपार्टमेंट. और अगेन आप कंपार्टमेंट भी नॉर्मल जो लैंग्वेज में कंपार्टमेंट हो सकता है वही सोच सकते हैं. तो ये जो हमारा पूरा भारत भर के जंगल हैं, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई और स्टेट हो या किसी भी वर्टिकल के पास हो, प्रोटेक्शन के टेरिटोरियल के पास हो या हम वाइल्ड लाइफ विंग के पास हो, तो हम पूरे उस जंगल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे हुए हैं जिनको हम कंपार्टमेंट्स कहते हैं. वो कंपार्टमेंट का एरिया यूजुअली 200 से 400 हेक्टेयर के बीच होता है. इससे बहुत छोटे भी हो सकते हैं, 20 हेक्टेयर का भी कंपार्टमेंट हो सकता है किसी कारण से, और शायद 400, 500 या 600 हेक्टेयर का. क्या ये मैप पे ग्रिड बना? ये मैप पे बने होते हैं. और मोस्टली जब ये ब्रिटिश टाइम में ही कंपार्टमेंट बनने का काम हुआ तो कोई भी नेचुरल फीचर लिया गया. तो एक कोई नाला जा रहा है, अच्छा, वो एक बाउंड्री हो गया. एक कोई रोड जा रहा है, वो बाउंड्री हो गया. कोई पहाड़ की रिज लाइन बाउंड्री हो गई. तो इस तरह से करके
बहुत सारी नेचुरल और कुछ मैनमेड फीचर्स, लीनियर फीचर को लेके जंगल को ये छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा गया जिन्हें कंपार्टमेंट्स कहते हैं। तो नॉर्मली मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो एक बीट गार्ड जिसको हम कहते हैं उसके पास लगभग 600, 700, 800 स्क्वायर हेक्टेयर का फॉरेस्ट होता है। तो लगभग 6, 7, 8 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट होता है। और जस्ट थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, हालांकि आप गलत बोल गए, पर बीटे पेंच में 117 है। आपने मुझे भी याद दिलाया था, बट 111 बोल गए। तो हमारे पास ये है, और बीट का साइज लगभग 6-7 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये 2-3 कंपार्टमेंट को मिला के एक एरिया बनता है, उसका एक बीट गार्ड होता है। तो उस बीट गार्ड की जवाबदारी है कि उन तीनों कंपार्टमेंट का प्रोटेक्शन उसे करना है। उसमें कोई भी सिल्वीकल्चर एक्टिविटी होनी है तो वो करना है। सिल्वीकल्चर मतलब हमारे जंगल में तो नहीं होता है, पार्क में, पर टेरिटोरियल फॉरेस्ट में यदि कोई पेड़ काटना है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आज मेरा दिल करा और मैं जाके पेड़ काट लिया। उसके लिए हम वर्किंग प्लान कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोडिफाई करा हुआ है। तो हम उस एक वर्किंग प्लान ऑफिसर होता है जो 2 साल तक उन जंगलों में घूम घूम के ये डिसाइड करता है कि पेड़ों को हम कितने काटना है, कैसे काटना है। और जब वो डिसाइड हो जाता है तो वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे देता है कि आप जंगल में जाओगे और पेड़ यदि 120 से कम का है तो आप टच नहीं करोगे। यदि 2 पेड़ों के बीच में 6 मीटर से ज्यादा का गैप है तो आप वो पेड़ को कट नहीं करोगे। सो वो कोडिफाइड जो रूल्स हैं उन्हें हम सिल्वीकल्चर रूल्स कहते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंगली फेल करते हैं। पर जैसे मेरे यहाँ तो वो नहीं होता है, बट पार्क के अंदर मान लीजिए हमें लैंटाना रिमूव करना है, तो मेरा एक बीट गार्ड जो अलीकट्टा बीट गार्ड, इट्स अ वीड, तो जो अलीकट्टा बीट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने यहाँ का लैंटाना को मैप करे और मुझे बताए कि साहब मेरे यहाँ 40 हेक्टेयर लैंटाना है, इसको रिमूव करना है। कोई और बीट गार्ड जोड़ा मुनारा का है, वो अपने यहाँ का मैप करके बताएगा। सो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फॉर योर बीट। तो उसमें आपको प्रोटेक्शन भी करना है। यदि कोई रोड वहां से जाती है तो रोड भी बनाना है। यदि कोई वाटर स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करना है, वो भी आपका ही काम है। तो उससे रिलेटेड सारी जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीट गार्ड के पास होती है। और हर फॉरेस्ट ऑफिसर को सिखाया जाता है कि प्रोटेक्शन इज पैरामाउंट। तो यदि हमने प्रोटेक्शन ही नहीं करा, फिर हम तमाम चीजें करते रहे, वो फ्यूटाइल है। इसलिए अभी जो है अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी बहुत टेक्नोलॉजी आ रही है धीरे धीरे करके। तो अब से कुछ सालों पहले 2012 और 13 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NTCA ने इंट्रोड्यूस करा एक एम स्ट्राइप प्रोटोकॉल कहते हैं। सो वो कुछ नहीं है, एक ऐप बेस्ड है, पेट्रोलिंग है, और बीट गार्ड हमारे सारे वो ऐप बेस्ड पेट्रोलिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम किसी दिन के आखिरी में देख सकते हैं कि वो किधर गया, या महीने के देख सकते हैं। एक हैबिचुएशन होता है ना कि मुझे शहर में A पॉइंट से B पॉइंट जाना है, 6 रास्ते होंगे, बट मैं एक ही रास्ते को हमेशा पिक करूंगा। उसमें आपका प्रोटेक्शन अफेक्ट हो सकता है। आइडियली यदि प्रोटेक्शन की बात हो तो आपको 6 रास्तों को करना है। किसी ने ट्रैक कर लिया कि तुम्हारा मूवमेंट पैटर्न क्या है, तो देन यू विल बी इन सूप। सो वो एम स्ट्राइप हमें उस तरह से गाइड करता है कि लुक योर बीट गार्ड इज ऑफन गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, ये नेग्लेक्ट हो रहा है। और ये एम स्ट्राइप के लिए कोई कंट्रोलर है कि ऐप ही खुद डिसाइड करता है कि ये पैटर्न? ऐप गिव्स अस ऑल द मैप्स, ऑल द कोऑर्डिनेट्स, एवरीथिंग। जो भी वो कितने बजे गया, कब रेस्ट करा, कब वॉक करा, किधर वॉक करा, क्या क्या उसने ऑब्जर्वेशंस ली, एवरीथिंग विल बी सर्व्ड ऑन अ प्लेटर। एज एन मैनेजर मैं और मेरी टीम उसको स्कैन करती है, देखती है। हमें जहाँ पे वीक एरिया लगता है हम उसे इम्प्रोवाइज करने को कहते हैं। सो यही हमारा मेन पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल है। बट इसको हम सप्लीमेंट करते हैं फिर एलिफेंट पेट्रोलिंग से, व्हीकल पेट्रोलिंग से। वी कॉल समथिंग कॉल कॉम्बिंग। तो आप देखिए जब बीट गार्ड नॉर्मल पेट्रोलिंग करेगा तो बीट गार्ड होता है, उसके साथ 2 वॉचर्स होते हैं, 2 या 3 लोग। तो ऑब्वियसली वो पगडंडियों पे जाएंगे, वो रोडों पे जाएंगे, बट जंगल के अंदर थ्रू एंड थ्रू नहीं जाएंगे। सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं। और तो फिर वी कॉल समथिंग कॉल कॉम्बिंग। सो कॉम्बिंग इज ऑलमोस्ट लाइक यूजिंग ए कॉम्ब। तो मेरे बीट गार्ड 2-2, 3-3 की टीम में एक दूसरे से 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाते हैं। देन एवरीबडी वॉक स्ट्रेट, और वो सीधे जाते हुए जो दिखते जाता है। तो सपोज कोई पोचर कभी घुसा है और उसने बीड़ी पी के फेंका है, तो वो आपको किसी और लोकेशन पे ही मिलेगी। तो उस तरह से वी डू अ लॉट ऑफ कॉम्बिंग। सो कॉम्बिंग जैसे वो पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में सारे ऑफिसर चलते जा रहे हैं और देख रहे हैं, तो दैट इज कॉम्बिंग। देन वी हैव एलिफेंट्स। तो हम एलिफेंट्स आर मोर फॉर इनर कोर एरिया स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून, बिकॉज देन योर एक्सेसिबिलिटी इज बैडली अफेक्टेड। सो एलिफेंट है। देन वी हैव डॉग्स आल्सो, स्नीफर डॉग्स हैं। आपने बताया कि ऐसे स्निफर डॉग्स हैं जो बिन लादेन को कैप्चर करते हैं। यस, दैट बेल्जियन मेलानॉइस द स्पीशीज दैट ब्रीड। सो हमारे पास बेल्जियन मेलानॉइस भी हैं और जर्मन शेपर्ड्स भी हैं।
दोनों ही बहुत ही अच्छी ब्रीड है और ट्रेनिंग उनकी बहुत ही अच्छी होती है। ऑलमोस्ट 1 साल ट्रेनिंग के बाद वो आते हैं हमारे पास एंड दे आर रियली डूइंग वंडर। और डॉग अकेला वंडर नहीं करता है, ये उसके लिए डॉग हैंडलर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, वेरी इफिशियंट। सो डॉग को तो आपको बताना पड़ता है उधर किधर स्निफ करना है। सो यू नीड दैट बेसिक इंटेलेक्ट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम कि अभी हमको कहाँ मिलेगा। राइट। सो और हैंडलर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। तो सर ये तो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं पेट्रोलिंग में। एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर सेंसस है, हाँ, तो टाइगर सेंसस में अभी GIS टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, ड्रोन्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द पगमार्क प्रोसेस आल्सो व्हिच इज एन एज ओल्ड। यस, आई एम ग्रेट बिलीवर ऑफ पगमार्क प्रोसेस एंड मुझे कैसे लगता है कि व्हाई आई एम स्टिल promoting and propagating the pugmark method, वो आपको बताऊं, इस जंगल में काम करने के लिए ना मोहब्बत बहुत जरूरी है। आप जब तक मोहब्बत नहीं करोगे आप इसको नहीं प्रोटेक्ट करोगे। और ये कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत करता है आदमी उसके लिए कुछ भी कर जाता है। तो जब हम ये पूरा चीज ऐप बेस्ड होता है ना, तो उसमें आपने पगमार्क का फोटोग्राफ ले लिया है और आपने कॉल रिकॉर्ड कर ली है या आपको बर्ड दिखा है आपने कर लिया है। ऐप में मोहब्बत नहीं हो सकती है। सो जब आप अपने हाथों से वो प्लास्टर कास्ट बनाते हो और फिर यू फील कि यार देखो मैंने कितना खूबसूरत कास्ट बनाया, तो मोहब्बत होती है। वो देखिए साइंस के तौर पे भी मैं जानता हूँ, एक साइंटिस्ट है संदीप शर्मा, जिन्होंने इस पे बहुत काम करा था। और मैं और बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो एक बीट गार्ड होता है ना, उसे अपनी बीट में जो टाइगर का मूवमेंट है तो उसमें वो पगमार्क बहुत अच्छा पहचानता है, क्योंकि उसे मालूम है मेरी बीट में वहां पे सैंडी सबस्ट्रेटम है, यहाँ मडी है, यहाँ हार्ड है, और उसी में वो बार बार देखता है। बट यस, आप किसी को दूसरी बीट का दे दोगे, उसे नहीं मालूम है कि कैसा सबस्ट्रेटम था, वो गलती करेगा। सो बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जहाँ 7 एक्सपर्ट को पगमार्क दे दिए गए और फिर उन्हें कहा तो किसी ने 1 कहा, किसी ने 2, और जबकि वो एक ही का था। बट वो 7 बीट गार्ड नहीं थे ना, वो पगमार्क उनकी बीट का नहीं था, उनकी हिस्ट्री नहीं थी उनके पास में। तो स्टिल आई एम ग्रेट सपोर्टर। और मुझे लगता है कि आप सोचिए मेरा फॉरेस्ट गार्ड 24 घंटे जंगल के अंदर रहता है, बिना मोहब्बत के कैसे रहेगा वो। सो बहुत सारी चीजें हैं और उसमें ये जो एज ओल्ड टेक्निक है पगमार्क की, उसका अपना एक रोल तो है ही। सो हम MS ट्राइब भी कर रहे हैं और हम ये जो पुरानी हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है उसको भी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। क्योंकि आपने एक पॉइंट बोला तो उस पे आ जाते हैं। आपने बोला कि जंगल में रह रहा है जी, आपके ऑफिशियल आपके पास 800 वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। सोशल ट्रॉमा क्या होता है सर? बहुत ज्यादा। आप सोचिए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग इन जेल, ऑलमोस्ट लाइक इट्स लाइक एन ओपन जेल। आप इमेजिन करो कि अब कुछ मेरे बीट गार्ड हैं जो कि एज पे रहते हैं, तो हु इज इन टूरिया गेट, शायद उसके लिए वो सोशल ट्रॉमा नहीं है, वो आप और हमसे शायद अच्छी लाइफ लीड करता है, रोज उसे बहुत सारे टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। बट वो सबके साथ नहीं है। मेरे बहुत सारे बीट गार्ड ऐसे हैं कि यदि वो जिस दिन वीकली मार्केट में सब्जी लेने आते हैं उसी दिन अपने चौकीदार और अपने खुद के सिवा किसी दूसरे आदमी को देखते हैं। और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, ये पूरे जिंदगी की बात है। यही उसका ब्रेड एंड बटर है। इट इज वेरी ट्रॉमेटिक। और जब तक हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, एक और जो पैराडॉक्स है कि जो थोड़े मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ के गोल वो बहुत जल्दी डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे मैं एज अ रेंज ऑफिसर आया तो मेरा गोल था कि मैं बहुत जल्दी असिस्टेंट डायरेक्टर या ACF हो जाऊं और फिर IFS हो जाऊं और अब मैं CF हो जाऊं। बट जो मेरा डेली वेजेस का आदमी है ना, वो डेली वेजेस ही आएगा और डेली वेजेस ही जाएगा 35 सालों में। इतनी मोनोटोनी है वो, तो न तो आपको कोई सैलरी में कोई बहुत बूम है, न तो पर्क्स में बूम है, सोशल लाइफ है नहीं, और आपको 3 एस्टेब्लिशमेंट, मोस्टली यदि आप मेरे स्टाफ से बात करेंगे 2 नहीं उसके 3 एस्टेब्लिशमेंट है। रीजन बीइंग दे ऑल कम फ्रॉम वेरी हम्बल विलेज बैकग्राउंड। एस्टेब्लिशमेंट मतलब जैसे आप आपकी फैमिली के साथ रहते हो तो इट्स 1 एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। बट इफ यू आर स्टेइंग एट 2 डिफरेंट लोकेशन, सो यू विल बी हैविंग 2 एस्टेब्लिशमेंट। 2 एस्टेब्लिशमेंट ऐसे हो जाता है। न्यूज़पेपर, आपकी वाइफ बच्चों को लेके कहीं रहती है, उनको भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो भी एक न्यूज़पेपर लेंगी और आप भी न्यूज़पेपर लोगे। इस तरह से हर चीज डबलिंग होने लगती है और वो डबलिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को बहुत बढ़ा देती है। और जो मेरा स्टाफ है वो 3 एस्टेब्लिशमेंट में रहता है। सो एज आई वाज सेइंग, मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम वेरी हम्बल विलेज बैकग्राउंड। मोस्टली उनकी 1, 2, 3 एकड़ या 4 एकड़ जमीन है जो उनके बुजुर्ग माँ बाप वहां पे रह के देखते हैं। वो अब समझ गए हैं कि जिंदगी बदलने का तरीका पढ़ाई है, तो वो अपनी वाइफ और बच्चे को सब डिवीजन हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखे हुए हैं और वो खुद जंगल के अंदर नौकरी कर रहे हैं। तो ये 3 एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट केवल एक सैलरी से चलाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हालांकि अभी पिछले कुछ सालों से NTCA का एक प्रोविजन है जिसमें वो राशन अलाउंस देते हैं जो लोग भी जंगल के अंदर रहते हैं। छोटा सा ही है, 835 रुपीज का, बट वो भी एक थोड़ा तो भी सपोर्ट है। बट जो आपने
आपने मेन क्वेश्चन कहा था, सोशल ट्रॉमा बहुत, और वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि हम उससे ओवरकम कर सकें। सर अभी आपके प्रयास मुझे पता है बहुत अच्छे से, मतलब मैंने पढ़े हैं कि आपके आप अपने कुछ ऑफिसर्स को छुट्टियों में अलाउ करते हैं कि गेस्ट हाउस में रुकें। यस आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कैंपेन करते हैं। यस आपने अभी हम लोग जहाँ से आ रहे हैं, आपके स्टाफ मिलके वॉलीबॉल खेल रहे थे, क्विज कंपटीशन चल रहा था, बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, मतलब वेलफेयर के जुरिस्डिक्शन में जितना आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अकेलापन है वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो या कुछ परिवर्तन आए मन में, तो वो शायद जल्दी ठीक होगा। यस देखिए, अब ठीक होगा तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक शॉर्ट टर्म कन्फाइनमेंट है और उसको अब ठीक करना है। हमने सुना है कि वो दिलीप कुमार किसी मूवी के लिए बहुत वो डिप्रेशन में चले गए थे, तो फिर वो ब्रिटेन गए उसका इलाज कराने। ये तो जिंदगी है, और ये जिंदगी को इसी तरह से कोप अप करना पड़ेगा। और हमारे सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे अपने तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके चैलेंजेस हैं। तो मैं मानता हूं कि ये मेरे जॉब का एक साइड इफेक्ट है और हमको उसी तरह से लेना पड़ेगा। बट येस, व्हाट यू सेड इज वेरी करेक्ट। तो मुझे लगता है कि कुछ तो ये मटेरियल चीजें हैं ना, खेल कूद और ये सारी, और कुछ स्पिरिचुअल चीजें भी हैं, वो भी हमने शुरू करा। गवर्नमेंट बल्कि बहुत प्रमोट कर रही है, और हम भी अपने स्केल पे आर्ट ऑफ लिविंग और उस तरह की स्पिरिचुअल चीजों पे भी इनको थोड़ा थोड़ा ले जाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए मुझे लगता है ना कि हर एक का फॉर्मूला अलग है उस डिप्रेशन से, डिप्रेशन तो नहीं मैं वर्ड यूज करूंगा, बट उस सोशल आइसोलेशन को हैंडल करने का सबका तरीका अलग है। आपका क्या तरीका? मेरा तरीका आप हो गप मारना है मेरा तरीका। मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गप मार लेता हूँ, और नहीं, आई एम दैट वे, आई एम ब्लेस्ड कि जैसा मैंने बताया एज एन डिप्टी डायरेक्टर मुझे करीब 15 दिन मिनिमम है, 15 से कुछ ज़्यादा दिन भी मैं रह लेता हूँ, कभी 22 दिन भी मैं जंगल के अंदर रहता हूँ। बट मेरा ऑफिस सिवनी में है, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी होती है कि ऑफिस जाऊँ, और ऑफिस में 50 स्टाफ है मेरा, उनसे डील करता हूँ। और बीइंग अ सिविल सर्वेंट, पब्लिक के लोग आते हैं, मुझे उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो रेंज ऑफिसर एंड अबव लेवल पे शायद वो प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम मेनली डेप्यूटी रेंजर्स, फॉरेस्ट गार्ड और जो वॉचर्स हैं उन्हें ये ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। ये बड़ा मेलनकोलिक टॉपिक है तो थोड़ा इसका पीछे करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी की बात करते हैं जी प्लीज। जो दूसरा टॉपिक है हमारा, पेंच में सर 40,000 कैटल है। यस, 66,000 to 70,000 पीपल रहते हैं बफर एरिया में। दैट्स ट्रू। कैटल किल का एक इशू राइजिंग है, एंड इट इज उसका कर्व जैसे ऊपर जा रहा है, वो इट इज गोइंग अलोंग विद द कर्व ऑफ टाइगर पॉपुलेशन आल्सो। दैट्स ट्रू। टाइगर कैटल मारता है बिकॉज इट इज एन इजी प्रे, ये कहना चाहिए। यस, लार्जली इट इज, यस या। तो सर मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। हाँ बताइए। अब ये दोनों स्टूपिड सॉल्यूशंस हैं, आप मुझे करेक्ट करिए। ओके ठीक है, पहला सॉल्यूशन है दूसरी बोवाइन स्पीशीज पेंच में इंट्रोड्यूस करें। ओके, एंड दूसरा सॉल्यूशन है कि अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हाँ। टाइगर्स को रिलोकेट करें। सो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। पहला तो वो टाइगर जो जंगल के अंदर है, जो पूरे समय जंगल के अंदर रहता है, और अब ये चूंकि पॉडकास्ट है तो आपके व्यूअर्स को भी हम मैप्स नहीं दिखा सकते हैं, बट मैं एक वर्ड से एक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं समझा पाऊँ। तो आप ऐसा देखिए कि मेरा पेंच टाइगर का कोर एरिया 411 स्क्वायर किलोमीटर है, और इस 411 स्क्वायर किलोमीटर में जो तोतलाडो रिजर्वायर है उसका लगभग 56 स्क्वायर किलोमीटर फॉल्स इन मध्य प्रदेश साइड। सो वी लेफ्ट विद अबाउट 360 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कोर एरिया, एंड देन आई हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया ऑफ बफर फॉरेस्ट। दो बफर इज अबाउट 370-380, पर उसमें बहुत सारा फिर रेवेन्यू है। ओके, और हम एक टाइगर के यूजेस का पॉलीगॉन बनाते हैं। आपको मालूम होगा हम कैमरा ट्रैपिंग ग्रिड्स में करते हैं 4 स्क्वायर किलोमीटर में, 2 स्क्वायर किलोमीटर में हम एक, अभी जो रीसेंट प्रोटोकॉल है वो 2 स्क्वायर किलोमीटर पेयर ऑफ कैमरा का है। तो हमने 2 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा कारपेटिंग कर दी। तो एक कोई पर्टिकुलर टाइगर जिस कैमरा ट्रैप लोकेशन पे आया, उसकी जो एक्सटर्नल मोस्ट बाउंड्री है, हमने वो एक्सटर्नल मोस्ट बाउंड्री को ड्रॉ करा और वो पॉलीगॉन बना। वो उसका हम मानते हैं मिनिमम यूजेस पॉलीगॉन वो है उसका टाइगर का। तो जो वो मिनिमम यूजेस पॉलीगॉन उन टाइगर्स का जो पूरे समय कोर के रहते हैं। अब आप ऐसा देखें, पेंच लैंडस्केप में 123 टाइगर हैं। अब पेंच लैंडस्केप इज नॉट ओनली द पेंच टाइगर रिजर्व बट एडजॉइनिंग टेरिटोरियल डिवीजन, वो भी सब उसका पार्ट है। बट लगभग 80-85 टाइगर्स ऐसे हैं जो पूरे समय पेंच टाइगर रिजर्व में ही रहते हैं। तो ये दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द कान्हा कॉरिडोर और सतपुड़ा? नो, सतपुड़ा कॉरिडोर इज तो अवे। अच्छा, मैं कॉरिडोर का जो फर्दरेस्ट वाली जगह है उनको नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं जस्ट एज पे काउंट कर रहा हूँ। सो यदि आप एनटीसीए का 2022 का एस्टिमेशन रिपोर्ट देखेंगे तो रफली अबाउट 84 टाइगर्स आर कंसिडर्ड टू बी फुल्ली इनसाइड द कोर एरिया, फुल्ली इनसाइड द टाइगर रिजर्व, एंड रिमेनिंग आर द वन हु आर ऑन एंड ऑफ, आना जाना करते रहते हैं।
तो ये जो फुल्ली 80 अंदर हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि उनको बाउंड्री दिखी और वो अंदर आ गए, उनका एक मूवमेंट पैटर्न है। और आप देखेंगे यदि पेंच का मैप आप गूगल करके देख सकें, नेट पे अवेलेबल है, तो जो हमारी बफर एरिया है ना वो बहुत ही कटी फटी है, जंगल और गांव और खेत का एक बहुत कॉन्ग्लोमरेट है, आपस में घुसे हुए हैं। तो आप ऐसा समझिए कि टाइगर एक जंगल के हिस्से पे है, सामने उसको दूसरा जंगल का हिस्सा दिख रहा है। यदि उसे जंगल ही घूम के जाना हो तो 5 किलोमीटर है, पर सामने का जंगल रात को वो गांव क्रॉस करके चले जाए तो शायद आधा किलोमीटर है। तो टाइगर उस आधा किलोमीटर को यूज करेगा, और रास्ते में उसको कोई गाय मिल गई और उसको भूख भी लगी है तो उसको वो इजी प्रे लगता है। तो ये जो किल हो रहा है ना, ये जंगल के अंदर नहीं हो रहा है, ये तो बाहर हो रहा है, एज पे हो रहा है। और ये उन टाइगर्स का हो रहा है जो घूम रहे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं। जो अंदर घूम रहे हैं वो ऑब्वियसली टाइगर और सारे जानवर ये एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं, ये एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उन्हें मालूम है कि मैं एक चीतल मारूंगा 50-60 किलो होगा, मीट 30-35 किलो है, 2 दिन 3 दिन, और क्योंकि इसके वेंजिंग भी होगी, और मैं यदि कोई गाय या बैल मारता हूं तो इट मे बी गुड फॉर मे बी 3, 4, 5, 6 डेज। तो जो आपने बात कही ना कि हम पेंच के अंदर कुछ भी कर दे, पेंच जो पूरे फुल टाइम कोर में रहने वाले टाइगर हैं वो कैटल किल कर दे नहीं जा रहे हैं कि चलो इधर बाहर हम इजी प्रे करते हैं। और दूसरा जो बात आपने कहा कि हम इन्हें कहीं इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो घर पे होता है ना, मम्मी पूछती है या वाइफ पूछती है क्या बना दो, तो हम बोलते कुछ भी बना दो। तो मेन्यू में कुछ भी कहीं नहीं होता है, वैसे ये कहीं वो कहाँ है, वो कहीं नहीं है। सो जो भी जगह टाइगर या वाइल्ड एनिमल के लिए कंड्यूसिव है, टाइगर खुद ढूंढ लेता है। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, हमारे 785 जो एस्टिमेटेड टाइगर नंबर था पिछले एस्टिमेशन में, रफली 400 और लिटिल लेस देन 400 आर इनसाइड द पीए, और बाकी 300 तो उन्हीं जंगलों में है जो कि पीए नहीं है, पर उन्हें लगता है कि ये कंफर्टेबल है, यहाँ मैं सेफ हूँ, यहाँ मुझे पानी मिल रहा है, यहाँ मुझे खाना मिल रहा है, तो मैं यहाँ हूँ। और यदि लोग तैयार नहीं है और आपने वहां ले जाके छोड़ दिया, इट कैन लीड टू डिजास्टर। हमने पन्ना भी देखा है, हमने सरिस्का भी देखा है, हमने नौरादेही भी देखा है, पर अनफॉर्चुनेटली हमने सतकोसिया भी देखा है, जहां पे हमने टाइगर इंट्रोड्यूस करे ओडिशा में और लोग तैयार नहीं थे, एक इलेक्ट्रोक्यूट हो गया, दूसरे टाइगर को भी लिफ्ट करना पड़ा। तो ये ना छोड़ने वाला ऑप्शन भी बहुत ईजी ऑप्शन नहीं है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, लॉट ऑफ प्लानिंग। और जो टाइगर पॉपुलेशन इस्टेब्लिश होने का जो गेस्टेशन पीरियड है 10 से 12 साल का, वो बहुत लंबा पीरियड है, उसमें लोगों को अपनी पूरी जान झोंक देनी पड़ती है। आपको मालूम होगा हमारे बहुत फेमस ऑफिसर हैं आर श्रीनिवास मूर्ति साहब, जो पन्ना इंट्रोडक्शन के समय रहे थे, तो कभी मौका मिले तो आप उनका भी इंटरव्यू करें और आपको पता चलेगा कि न सोना न जागना, बस टाइगर 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 टाइगर। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन जो है मुझे लगता है वो है लोगों को एजुकेट करना, और हम उस पे लगे हुए हैं। थैंकफुली मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्पाइट कैटल किल का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, पर आप देखिए कि यदि आप 2000 टू 2010 के बीच में जो पॉइजन होने वाले टाइगर का नंबर था वो कम हो, और अब है वो नेग्लिजिबल है। तो हमने लोगों को एजुकेट करा। आज मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द ग्रीन सोल्जर्स, बट बराबर का क्रेडिट जाता है उन गांव वालों को जिन्होंने हमारी बात समझी और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। अब आपने कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करी, तो इस पे आपका जो काम है बहुत सारे आप करते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट के, चाहे वो सम्मेलन हो, चाहे वो जितने भी तरीके से आप लोग रात को भी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत कुछ है और ये सालों की मेहनत है। ट्रू। जैसे टाइगर गिनना 123 गिनना, एक सेंसस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप ये भाषा समझते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट का क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं आप? हमने किया, और देखिए एक तो बहुत अच्छा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है फायर इंसिडेंसेस। अच्छा। हम बचपन में छोटे थे तो सुनते थे कि कभी कोई पत्थर के रगड़ने से आग लग जाती है, तो कभी कोई बांस के रगड़ने से आग लग जाती है, पर यकीन मानिए इतने साल की नौकरी में वो पत्थर मुझे नहीं मिला जिसके रगड़ने से जंगल में आग लगती है। मैन मेड ही फायर होती है। सो मैन मेड फायर होती है। और जितनी भी आग होती है ना, आपने किसी की लकड़ी पकड़ी है, किसी की रेत की ट्रॉली पकड़ी है, जो भी इलीगल एक्टिविटी करते पकड़ी है, वो इंतजार करता है गर्मियों के आने का कि अब हमारा भी मौका आएगा, और वो जंगल में फिर आग लगाता है। तो ये एज अ रिवेंज, या एज अ रिवेंज अगेंस्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एज अ रिवेंज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट गार्ड, और मे बी अ डेप्यूटी रेंजर, और मे बी अ फॉरेस्ट रेंजर, और हूसोएवर ही इज। तो ये हर फॉरेस्ट वाले को मालूम है कि आग लगती ऐसे है। बट मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ 2 तरह से। पेंच में जो मेरी टीम है, प्राउडली आई कैन वाउच, मैंने बहुत सारे टाइगर रिजर्व देखे हैं, पर जैसे रेंज ऑफिसर या डिप्टी रेंजर मेरे पास हैं शायद ही किसी के पास हो। SDOs हैं, बहुत अच्छी टीम है,
और जो कम्युनिटी है वो आपकी बात सुनने को तैयार है। ऐसा भी नहीं है कि आप उनके पास जाए तो वो पत्थर लेके आपके पीछे दौड़ पड़े। तो ये हमने बहुत तरीके से धीरे धीरे, लास्ट ईयर का मैं डेटा देख रहा था, हमारे पास गांव तो 107 हैं पर समितियां 130 समितियां, कुछ बाहर की समितियां भी हमारे पास हैं। तो हमने लगभग 750 से ज्यादा मीटिंग्स करी। तो लगभग हर दूसरे महीने हमने एक गांव में मीटिंग करी। हमारे पास सयाने मोगली की साइकिल है, वो रोज किसी न किसी गांव में गाना बजाते हुए घूमती रहती है। फिर हम बाघ रक्षा दिवस मनाते हैं तो राखी बांधने जाते हैं ताकि वो एक इमोशनल कनेक्ट हो सके। हम वॉलीबॉल कराते हैं, खेल कराते हैं, स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की कोचिंग करा रहे हैं। तो हर तरह से ब्यूटी पार्लर का कोर्स, LNT के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, वहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी मैकेनिक का कोर्स कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं। तो भाई तुम्हें जो जॉब करनी है ना, तुम बताओ, हम तुमको ट्रेनिंग देंगे। तुम ऐसे फालतू मत बैठो, क्योंकि फालतू दिमाग शैतान का घर, हमें बहुत पहले बता दिया गया था। हमें शैतान को नहीं आने देना है। उन सब चीज़ों का असर हुआ कि जब मैंने प्लॉट किया 2021 से अभी तक, तो हमारे फायर इंसिडेंट्स ड्रास्टिकली कम हो गए। इट यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 60 यदि इफ आई एम करेक्ट, और इस बार हमारे कुल 11 जगहों पे आग लगी। तो ये तो गांव वालों का है कि वो आग ही नहीं लगा रहे हैं। मतलब कोरिलेशन इज बिटवीन फायर इंसिडेंसेस एंड लेस रिवेंज, या ऑब्वियसली, सो दे आर लेस रिवेंजफुल। आप यदि हमारे देखेंगे कि हमने जो क्राइम रजिस्टर करे वो कम नहीं हुए, वो तो ज्यादा ही हो गए, और हम इफिशिएंटली काम कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रीवांस है, हमने उनको बताया कि यार ये 3 चोर है ना, इनके बहकावे में मत आओ, आप हमारी सुनो, हम जो बनता है वो करेंगे। अभी आपने देखा होगा, एक मेरे SDO के दिमाग की उपज थी, पर पूरी टीम उसको कहते हैं ना, जब आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है। तो आशीष पांडे मेरे SDO हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो एक घटना हुई, सावंगी एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। गांव में तो बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, और स्ट्रे डॉग्स ने आके उन बच्ची पे अटैक करा एंड शी वॉज बैडली इंजर्ड। तो जब आशीष को पता चला, 1 या 2 दिन बाद वो दौरे पे थे, सावंगी इज अ फॉरेस्ट विलेज, तो हमारा जाना दूसरे गाँव की अपेक्षा ज़्यादा ही होता है वहाँ पे। तो ही कम अप विद द आइडिया कि सर ये बच्चे ऐसे खेलते रहेंगे तो आज कुत्ता काटा है, कल लेपर्ड काटेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और माँ बाप भी चिंतित हैं, और फिर जंगल के बगल में रहते हैं तो कभी जंगल में चले गए। इट्स अ रिस्की प्रोपोजिशन। तो हम पार्क क्यों नहीं बनाए? तो समितियों के पास पैसा है, स्कूल के टीचर से बोला कि भाई आपके बच्चे यहीं खेलते हैं पर खेलने जैसी जगह ही नहीं है। तो हमने थोड़ा लॉन ग्रास लगा दी, कुछ झूले लगा दिए, फिसल पट्टी लगा दी। अभी हमने 5 पार्क ऐसे बना लिए हैं। तो जब मैं गया उन पार्कों में, तो गांव वाले दे वर ओवरवेल्म्ड। आप ये सोचिए, हम जो शहरी लोग हैं ना, हम बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसमें सिटी पार्क भी है। हमें लगता है तो नॉर्मल है, शहरों में तो होती है, और सोच भी नहीं सकते कि गांव में कोई पार्क होगा। बट इतने खूबसूरत पार्क बनाए हैं लोगों ने, गांव वालों के साथ मिलके, हमारे कर्मचारियों ने। और जब मैं उन बच्चों को खेलते देखता हूँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होता है, पर मुझसे कहीं ज्यादा उनके माँ बाप को होता है। और वही माँ बाप जब मेरी टीम में आ जाते हैं तो मेरा जंगल सेफ हो जाता है। यही मेरा अल्टीमेट मैनेजमेंट गोल है। सर, अभी आपने शहरी लोगों की बात करी तो टूरिज्म पे भी आ जाते हैं। ओके, डेफिनेटली। मेरा कंप्लेंट है कि टाइगर से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। आई नो टाइगर इज द मैस्कॉट, टाइगर इज अ बिग एसेट, टाइगर से इको टूरिज्म चलता है, और टाइगर के कंजर्वेशन से ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आइसोलेशन में टाइगर का कंजर्वेशन हो रहा है, सभी पूरे इज एन अम्ब्रेला जिसके अंदर सबका कंजर्वेशन हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली, हैविंग सेड दैट, हैविंग एस्टैब्लिश्ड दैट, जंगल में घुसो तो सबकी प्रायोरिटी इंक्लूडिंग द गाइड एंड द प्रायोरिटी ऑफ द, मतलब मैं कहूँगा कि टूरिस्टों की तो बहुत ज्यादा गलती है ही कि ओनली ऑब्सेशन इज कि जैसे हम कहते हैं कि टाइगर नहीं दिखा तो कुछ नहीं दिखा। हाँ। ये सेम ऑब्सेशन जायंट स्क्विरल या गोल्डन फ्लेम ब्लैक या एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये इसके लिए क्यों नहीं हम क्रिएट कर पाए? देखिए, मैं 2-3, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स आपका क्वेश्चन है, बट सबसे पहले मैं टूरिस्ट को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हमने नाम इसे दिया पेंच टाइगर रिजर्व, सो सिंस वी नेम्ड इट एज एन टाइगर रिजर्व, सो एवरीबडी विल गोइंग टू एक्सपेक्ट कि टाइगर दिखेगा। हैड वी नेम्ड इट पेंच बटरफ्लाई रिजर्व तो लोग बटरफ्लाई मानते। हैड द नेम ऑफ द मूवी इज मैं हूं खान, तो आपको वहां पे कोई खान चाहिए, यू नो, एनी अदर एक्टर विल नॉट डू जस्टिस। तो टूरिस्ट का उसमें कोई गलती नहीं है। अब हमारा पार्ट क्या है, जो आपने कहा कि हम उन्हें एजुकेट क्यों नहीं करते हैं। यस, आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम एजुकेट शायद नहीं कर रहे थे, बट थैंकफुली आपको पता होगा, पेंच में हमने 2 साल पहले एक इनिशिएटिव शुरू करा, इन इवनिंग विद जंगल वाला, वेंसडेज को जो होता है, जो पहले हमने शुरू करा वेंसडे से। फिर हमें रियलाइज हुआ कि वेंसडे इज नॉट द मोस्ट, क्योंकि लोग रिजॉर्ट से गेट तक आने को बहुत तैयार नहीं थे। देवर ओकेजन इन इनिशियल, जब हम ही ऑडियंस थे, हम ही स्पीक करते थे, नो वन देयर।
लेकिन हमने वो हिम्मत नहीं खोई, मैंने सबको मोटिवेट करता रहा कि यार कोई दिन आएगा जब ये पॉपुलर होगा। और फिर हमें रियलाइज हुआ सैटरडे एक हो सकता है, तो हमने कई 2 साल तक वेडनेसडे सैटरडे चलाया। दिस ईयर ऑनवर्ड इट्स अ डेली अफेयर, तो आज भी अभी चल रहा होगा और हर दिन सफारी के बाद चलता है। तो एक तो ये ओनस एज एन फॉरेस्ट ऑफिसर मेरा है कि मैं उसे एजुकेट करूं, एज एन होटलियर होटल वाले का भी है। बट आप देखिए ना, ये हमेशा होगा कि किसी चीज का करिश्मा ज्यादा होगा, फिर मैं फिल्मी बात ही करूंगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। सो किसी की स्टार वैल्यू ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन फिर भी मैं टाइगर का ऑब्जर्वेशन भी उतना ही गलत है जितना कि जाइंट स्क्विरल का है। अभी आप देख रहे हो कि लोग वो कोई पर्टिकुलर बर्ड का ब्रीडिंग के लिए इतनी भीड़ खड़ी कर देते हैं कि उसको डिस्टर्ब करने लगते हैं, एंड दैट इज वेरी अनकॉल्ड फॉर। कि आप किसी का ऑब्जर्वेशन नहीं, आपको इसको नेचर को एक होलिस्टिक वे में देखना और समझना चाहिए, और मुझे लगता है ये धीरे धीरे आएगा। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे नेचुरलिस्ट हैं, डेविड राजू नाम है उनका। तो एक बार उन्होंने बताया कि सर मैंने अपने जितने भी फोटोग्राफ खींचे हैं वो सारे के सारे विकी कॉमन में डाल दिए हैं। अच्छा। इन वेरी हाई रेजोल्यूशन। अच्छा। और तो मैंने कहा डेविड, ये डिग्री ऑफ जो ग्रेजुएशन है धीरे धीरे आता है। जिस दिन आप पहली बार जंगल जाते हो तो आप सोचते हो मुझे बाय ऑल मीन्स मुझे टाइगर देखना है, फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है, फिर आप जंगल को एंजॉय करने लगते हो। तो आप जो पहला फोटो खींचते हो उसमें इतना बड़ा बड़ा नाम लिखते हो कि टाइगर छोटा हो जाता है और आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो बड़ा हो जाता है, वाटरमार्क इतना बड़ा हो जाता है, सबको शौक है। बट सून यू रियलाइज कि तुमने टाइगर से तो पूछा ही नहीं था कि तेरी फोटो खींच लो क्या, और वो फिर होता है। और मैं तो अपने इस लंबे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आज बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं कंजर्वेशन के लिए, आज से 10-15 साल पहले दे वर ऑल्सो दोज क्रेजी टूरिस्ट जिनको टाइगर का ऑब्सेशन था, बट कोई उन्हें मिल गया जिसने उनको शेप किया, एंड नाउ दे आर वर्किंग फॉर कंजर्वेशन। तो आई थिंक वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, और एक दिन आएगा कि जब सब लोग बहुत एजुकेटेड होंगे और हम वी आर वर्किंग फॉर द डे। सर आपने कंजर्वेशन एजुकेशन जैसे ही बोला तो इट गॉट मी एन एंट्री इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके प्लीज, व्हिच इज सर बाघ की कहानी मुन्ना की जुबानी। How did that happen, sir? How did you end up writing a children's book? And what was that experience like? Okay, that experience was great. I wish मैं नाम ले ही सकता हूँ। So हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नर थी मैडम आनंदीबेन। अच्छा। तो मैं भोपाल में पोस्टेड था, और एक बार उन्होंने मुझे बर्ड्स पे डिस्कस करने के लिए गवर्नर हाउस बुलाया, और ये कुछ अप्रैल मंथ की बात होगी, अप्रैल 19 की बात होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, या इट वाज अप्रैल 19। और तो हम बर्ड्स के बारे में बात करते रहे। उसके बाद मैडम ने कहा कि उनकी आदत है, जब वो यहाँ गवर्नर थी और अभी यूपी में है तो डेफिनेटली वो फॉलो करती होंगी कि हर दिन किसी स्कूल के बच्चे उनसे मिलने आते हैं। और उन्होंने कहा कि रजनीश, बच्चे मुझसे मिलने आते हैं और मैं उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, बट ऑल दीज बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और मध्य प्रदेश तो ऑल अबाउट टाइगर, तो कोई अच्छी सी टाइगर की बुक आप मुझे बताना जो सस्ती भी हो ताकि मैं रोज 50 बच्चों को दे सकूं। तो मैंने कहा मैडम ऐसी बुक नहीं है, मोस्टली बुक्स तो बहुत वॉल्यूमिनस हैं और वेरी एक्सपेंसिव। तो उन्होंने मुझे कहा भी कि 5 रुपए की होनी चाहिए। अच्छा। तो आप समझ सकते हो आज के हिंदुस्तान में 5 रुपए बहुत अनरियलिस्टिक सा फिगर है, बट दिस इज व्हाट द लेडी गवर्नर मैडम इंस्ट्रक्टेड। तो मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद हमने बात करा तो हमें लगा कि हम एक 4 फोल्ड का एक फोल्डर जैसा बना सकते हैं ऑल अबाउट टाइगर, और इट विल बी अ गुड गिफ्ट यदि गवर्नर मैडम सब बच्चों को देंगी तो, और बच्चों के लिए बहुत ऑस्पिशियस है। कितने बच्चों को मौका मिल पाता है अपने स्टेट के गवर्नर से मिलने का। तो हमने ढूंढना चालू करा कोई राइटर मिल जाए। अच्छा, मैडम ने एक चीज और बोली थी कि टाइम का ध्यान रखना, मुझे जो लोग टाइम पे डिलीवर नहीं करते वो मुझे नहीं पसंद है। सो और मैंने उन्हें प्रॉमिस कर दिया कि मैडम आप तो 29 जुलाई को आई विश कि आप हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी, और 29 जुलाई को उसी दिन हम लॉन्च करेंगे। हमने भी उत्साह में बोल दिया, मतलब ये अप्रैल की किसी डेट की बात है, तो मई, जून एंड जुलाई 29 की बात थी, और वादा करके आ गए वहां पे। और एज एन गवर्नमेंट ऑफिशियल आप गवर्नर को कोई बात बोलते हो तो वो कैजुअल नहीं है, यू कैन नॉट लाइक या। सो फिर ऑथर ढूंढना शुरू करा, किसी ने मुझे 1-2 चीज दिखाई, मुझे मजा ही नहीं आया। तो जब समय फिसलने लगा तो मैंने कहा कि रजनीश अब तो तुम्ही को कलम उठानी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। और वो एक फ्रेम था कि कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए, बहुत सिंपल होनी चाहिए, बच्चों को होना चाहिए। और मैं खुद भी बहुत सारा लिटरेचर देखता हूँ, बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं, समझ में ही नहीं आता है बच्चों को, या फिर ओवर सिंप्लीफाई करना भी बैड है, तब आप साइंस ही समझ नहीं पाओगे। तो जब लिखने की शुरुआत करी, थोड़ा बहुत कुछ तो हर कोई लिखता है, हम भी लिख लिया करते थे, नहीं, आप लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं आप। बट उस ऑर्गेनाइज तौर पे, और वो एक टाइमलाइन भी था। तो उसमें कुल 16 पेजेस हैं,
और हर पेज में 160 to 180 वर्ड्स हैं। उसी में हमने करा था कि उन 16 पैराग्राफ्स में हमको आपने पेजेस कम रखे और टेक्स्ट बढ़ा दिया ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाँ वो भी हो। और सो देयर वर लॉट मेनी थिंग्स कि वी हैव टू टॉक अबाउट अ जर्नी ऑफ अ टाइगर, सो देयर हैज टू बी एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू नो एट द बिगिनर्स लेवल हैज टू बी देयर। तो वो करना शुरू करा और जब कंप्लीट हुई तो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आने लगी। और मतलब आई एम वेरी प्राउड कि हालांकि वो सेल के लिए नहीं थी बट लोगों ने बहुत जेनरस होकर डोनेशन दिया उसको पब्लिश करने के लिए, और कुछ उसकी 37,000 कॉपीज फाइनली प्रिंट हुई। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। कोई मुझे कहता अच्छा तुम ऐसे ऑथर हो जो तुम्हारी पहली किताब 37,000 छपी। सो you're a published author, not lot of people don't know that. Yes, so but unfortunately देखिए कुछ चीजें कैसी डेस्टिनी होती है कि 29 जुलाई को 19 को मध्य प्रदेश वाज डिक्लेयर एज अ टाइगर स्टेट। ऑनरेबल पीएम ने उसी दिन डिक्लेयर करा था। और हमें कुछ मेहनत कर, जैसे आप बहुत पढ़ाई अच्छी करे हो तो आपको मालूम होता है ना अच्छे नंबर आएंगे। सो नंबर 1 2 कोई बात नहीं है, बट वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट वील गोइंग टू come up with a very good number, and I was part of that core team जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन मध्य प्रदेश के लिए पूरा डिजाइन कर रही थी और कर रही थी। सो आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड नंबर, और उस गुड नंबर के साथ मेरी बुक लॉन्च होने वाली थी। बट 2 दिन या 3 दिन पहले मैडम यूपी की गवर्नर हो गई, और अनफॉर्चुनेटली जो नए गवर्नर का स्वेरिंग इन 29 को हो रहा था, और 29 जुलाई को ही मैडम का यूपी में स्वेरिंग इन हुआ। तो बुक तो लॉन्च हुई द देन सीएम जो थे हमारे मिस्टर कमलनाथ उनके द्वारा, और पर मुझे 1 साल बाद फिर मौका मिला 2021 में। 2020 में फिर मैडम एक बार भोपाल आई थी, मैंने उनसे टाइम मांगा और मैंने कहा मैडम मैंने प्रॉमिस निभाया था। आपको शायद नहीं मिला होगा। हाँ, उनको फिर मैंने उन्हें गिफ्ट करी, काफ़ी कॉपीज़ मैंने उन्हें गिफ्ट करी कि अब लखनऊ में भी बच्चे आते होंगे तो प्लीज़ आप उन्हें दीजिएगा। एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी ओवरवेल्ड। Yes, that is so sweet, and I'm so thankful for this opportunity ना, because ये peak of COVID था and everybody was following lot of protocols, but उस peak COVID में भी उन्होंने मुझे allow करा कि मैं गवर्नर हाउस जाके उन्हें बुक दे सकूँ। तो I'm really thankful to the lady. And sir, is it true that the iconic design of the कान्हा बारहसिंगा उसमें भी आपका योगदान है? Which one? जो डिजाइन है कान्हा की, उसमें आपने कुछ काम? नहीं, कान्हा में मैंने बहुत सारा काम करा है, बट यदि आप कान्हा का लोगो बोल रहे हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, अ बारहसिंगा, अ ग्रास, अ टाइगर एंड अ साल फॉरेस्ट, वो सीई ने बना के दिया है। वो सीई का है। और जो कान्हा का मस्कट है भूर सिंह, वो रोहन चक्रवर्ती जो नागपुर के ही इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट हैं उनका बनाया है। तो उन दोनों में मेरा योगदान नहीं है। उन्हीं की डिजाइन है जो शायद जैसे जो लेपल पेन्स वगैरह है वो भी सब उन्हीं का? नहीं, लेपल पिन उनका डिजाइन नहीं है। सो लेपल पिन हमें 2-3 लोगों ने करा है, बट जो सबसे पैशनेट कुछ बहुत दीवाने वाइल्ड लाइफर होते हैं, तो एक इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट है दीपक गांगुली, एंड मैं उनका नाम भी यहाँ लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को कंट्रीब्यूट करने की जब बात होती है ना, तो लोग जैसे आपने कहा था और मैं उस समय शायद कहता पर अब कह रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे ही कंट्रीब्यूट करते हो। आप जिस भी डोमेन में हो, यू नेम इट, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जो दीपक गांगुली हैं वो मुंबई और बेंगलुरु इन दोनों जगह के बीच मैंने उन्हें देखा है हॉप करते हुए पिछले 10 सालों में, और वो जिस भी एड एजेंसी के लिए काम करते होंगे वो तो मुझे नहीं पता है, बट उनकी ब्लैक एंड वाइट स्केचेस सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है। तो वो एक्चुअल फोटोग्राफ को स्केच में कन्वर्ट करते हैं पेन से, और बहुत सारी डिज़ाइन हमें दीपक गांगुली ने बना के दी है। दीपक गांगुली जो अपने बहुत सारे आर्टवर्क को सेल करते हैं, और जो हमारी डॉग स्क्वाड है वो एक और ऑर्गेनाइजेशन है सेविंग टाइगर सोसाइटी, उसके थ्रू डॉग्स परचेस करने के लिए वो डोनेशन देते हैं। तो जो उनका आर्ट है वो हमेशा बोलते हैं कि इट्स फॉर कंजर्वेशन, आप इसे सेल करिए, आप इसे यूज करिए, आई एम ऑलवेज फॉर आर्ट। तो वो उनका बहुत सारा ऑल दोज लेपल पिन्स आर मोस्टली बाय दीपक गांगुली। ठीक है सर, अभी थोड़ा सा बैक टू थोड़ा सा सीरियस टॉपिक। ओके ग्रेट। देयर इज, मैं एक सीन पेंट करता हूँ सर, आप बताइएगा वो सीन कैसा था, क्या था, ठीक है? 15th, 16th, 17 दिसंबर 2016 आरा विलेज, वहाँ पे कुछ वेस्टर्न साईफाई फिल्म का सेटअप था। 25 घुड़सवार, कुछ आदमी चेस कर रहे हैं एंड एक हेलीकॉप्टर। सर वो ये फिल्म सेट जो था वो एक्चुअली में था क्या, वो बताइए। बोमा का आपके लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन, आपके करियर में कंट्रीब्यूशन है क्या, वो बताइए। एंड यू आर एन एक्सपर्ट एंड यू आर इंडियाज प्रॉब्ली लाइक
one of the best experts in Boma. बहुत आकांक्षा भी मुझसे पूछी थी Boma, what is Boma? तो आप थोड़ा बता सकते हैं? So yes, मेरी लाइफ की जो बहुत अच्छी चीजें हैं उनमें से एक है बोमा. एंड बोमा इज एन अफ्रीकन टर्म फॉर काइंड ऑफ हमारे जो हिंदी में गोठान जिसको कहते हैं, आई डोंट नो उसका इंग्लिश टर्म क्या होगा, बट गांव में एक ऐसी जगह जहां पे आप केवल एक फेंस बना देते हो और रात को अपने मवेशी रख देते हो. सो गोठान उसे कहते हैं. नॉर्दर्न इंडिया में तो ये बहुत पॉपुलर कॉमन टर्म है. अफ्रीका का यही टर्म बोमा है. बोमा इज नथिंग बट अ फनल शेप्ड टू वॉल्स. एक ब्रॉडर साइड है, एक नैरोअर साइड है, और वो ब्रॉडर साइड से एनिमल को चेज करते हुए आते हैं. ये वॉल ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स है इन लेंथ. नो, इट डिपेंड्स. It depends upon the species. It depends upon the methodology which you are using. So बहुत सारा अलग अलग होता है. सो अफ्रीका में 2-3 किलोमीटर तक भी हो सकता है. हमने जो मैक्सिमम करा 1.2 किलोमीटर करा है. अच्छा, 1.2 किलोमीटर. जो एरा का आप बता रहे हैं, एरा वाज 1.2 किलोमीटर. द माउथ ऑफ इट और द लेंथ ऑफ? No, the length of it. अच्छा अच्छा. The length of one wall was 1.2, the other wall was about 1.1. Little less. So they were not like very symmetrical. थोड़ा asymmetrical थे वो. And width was also about a kilometer. The wider side was about a kilometer, maybe little less. So वो बोमा वहां से आया है. मध्य प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि 2004, 5, 6 वो टाइम था जब हम देख रहे थे कि हमने जो 90s में शायद चूके करी थी. आपको मालूम है कि 90s में पूरा इंडिया में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा था. बीट वल्चर, बीट टाइगर, बीट लेपर्ड. तो मध्य प्रदेश और उस जमाने में अधिकारी, मैंने 97 में जॉब ज्वाइन करा, बट मेरे ख्याल से उस समय ऑलरेडी जो लोग पोजीशन पे थे, दे हैव रियलाइज्ड द प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर दिए थे. तो ऑर्गेनाइज क्राइम को कैसे रोका जाए, पॉइजनिंग को कैसे रोका जाए, और इन बहुत सारी चीज़ों को. बट आप देखिए ना कि जो देरी हो चुकी थी, तो आपकी जो कॉरिडोर कनेक्टिविटी बहुत सारी टूट चुकी थी. तो हुआ कि हमें अब ये नेचुरल कॉरिडोर तो बचे नहीं, तो कोई स्पीशीज कहीं खत्म हो गई तो हम एरियल कॉरिडोर से ले आए. तो एरियल कॉरिडोर नॉट नेसेसरली थ्रू अ चॉपर और अ प्लेन, बट मे बी यूजिंग अ ट्रक और समथिंग एल्स. सो हमने टाइगर में करना शुरू करा और पन्ना में हमने सबसे पहले करा. हमारे एक अधिकारी उन दिनों होते थे मिस्टर HS पावला. आज भी वो बहुत एक्टिव हैं एंड वन ऑफ द आई थिंक लेजेंडरी वाइल्ड लाइफ मैनेजर ऑफ इंडिया. और उनका वो ब्रेन चाइल्ड था, और हमने कान्हा से और बांधवगढ़ से और पेंच से पन्ना में 3 टाइगर इंट्रोड्यूस करे, और आज वहाँ पे उस लैंडस्केप में 70 से ज़्यादा टाइगर हैं. और फिर उसी समय हमने गौर के लिए सोचा. जब मैं हमने कह रहा हूँ तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो बहुत ही एक अदना सा और बहुत छोटा हिस्सा हूँ उसका, एक डॉट भी नहीं मिनिस्टिकल हूँ बहुत, बट यस आज भी ये बहुत बड़ा कैनवास है. आज भी एक मतलब एक तो चींटी भी बड़ी होगी, बट एनीवे ठीक है मान तो वहाँ पे ये विजन आया कि हम गौर करें. और तब एक CC अफ्रीका, एक अफ्रीकन कंपनी होती थी, उनके साथ और ताज के साथ कोलैबोरेट करा. जब हमने गौर करा तो अफ्रीकन एक्सपर्ट से जो इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, तब हमें पहली बार बोमा के बारे में पता चला. उन दिनों शायद यूट्यूब वगैरह भी कॉमन नहीं थे, क्योंकि यूट्यूब वीडियो तो रहे होंगे मेरा मानना है, बट हमने नहीं देखे थे. और वहां से उन्होंने कहा कि लुक, आपकी जो स्पीशीज है, चाहे बारहसिंगा या चीतल है, ये हमारे पास नहीं है. अफ्रीका में दे हैव ऑल एंटीलोप, दे डोंट हैव डियर. तो हमें इनका बिहेवियर नहीं मालूम है. सो दिस इज द मेथोडोलॉजी, बट डू इट योरसेल्फ. या वी रियली डोंट नो, वी आर नॉट एन एक्सपर्ट. और हमने फिर धीरे धीरे शुरू करा. उसी समय मेरे सेकंड टर्म के लिए मैं कान्हा पहुंचा 2013 में, और मेरे बॉस थे मिस्टर JS चौहान, जो चीफ एल वार्डन थे अभी कुछ समय तक मध्य प्रदेश के, अब रिटायर हो गए. तो उन्होंने पहली बार कोशिश करी कि हम बारहसिंघा को एक सेकंड होम दे, और हमने बारहसिंघा के लिए करा. उसमें पहले कहा गया कि आप पहले वन विहार कुछ छोड़िए, तो हम वन विहार ले गए सक्सेसफुली. यहाँ मैं आपको बताऊं कि पहले भी अटेम्प्ट हुए थे 80s में, और वो बहुत फेटल थे. जितने पकड़े वो सारे के सारे मर गए. तो मतलब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये था कि बिना एनिमल को टच किए और बिना किसी फटीग या किसी भी हार्म के उसको ट्रांसलोकेट करा जाए. Right. That was the challenge. That was the challenge. And earlier whenever it was tried, it landed at a trouble water. Yes. जानवर मर गए या कुछ और हो गया. सो बट ही टुक इट एज एन चैलेंज. और हाँ, हमारी कान्हा की टीम जुट गई और हमने बारहसिंघा को बहुत सक्सेसफुली सतपुड़ा में इंट्रोड्यूस करा. उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आया. कान्हा में विलेज रिलोकेशन हो रहा था, वहां से हमने चीतल को कान्हा, किसली और मुक्की के इलाके से निकाल के इस अडवार और सुपखार के तरफ छोड़ना शुरू करा. और फिर वहीं से जब मेरी पोस्टिंग भोपाल हो गई, तो मेरे बॉस थे चीफ वाइल्ड वार्डन देन मिस्टर जितेंद्र अग्रवाल साहब. और मध्य प्रदेश या पूरे भारत में ही ये ब्लू बुल की क्रॉप रेटिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम. तो अगेन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक सॉल्यूशन उस समय सोचा गया
कि यदि हम इनका वेसेक्टोमी कर दें तो इनकी पॉपुलेशन को हम रोक पाएंगे। हालांकि साइंटिस्ट के बीच इसको भी लेके डिबेट और डिस्प्यूट है कि वेसेक्टोमी हो सकता है कि नहीं, पर फिर कोई दूसरा ऑप्शन कलिंग के लिए हम इंडिया में आज भी रेडी नहीं है। कलिंग उस समय ट्राई करी थी पर वो नहीं, कलिंग हमने मध्य प्रदेश में कभी ट्राई नहीं किया, कभी हमने ट्राई। कलिंग का जो एक एफर्ट हुआ है वो बिहार में हुआ है, पर मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ है। सो कलिंग हमने नहीं ट्राई करा, तो हमने ये सोचा कि हम वेसेक्टोमी करें। पर वेसेक्टोमी करने के लिए आपको एनिमल को पकड़ना पड़ेगा, तो पकड़ोगे कैसे आप? तो हुआ कि हम चूंकि बोमा टेक्निक से बारहसिंगा और चीतल करे हैं तो हम ये करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था अफ्रीकन बोमा को देखने का, तो हमने यूट्यूब से सीखा कि कैसे करा जाए। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं कार्तिकेय सिंह, वो पहले सीसी अफ्रीका और ताज में ही काम करते थे। वो अफ्रीका गए हुए थे, तो हमने उन्हें भी अपनी टीम में शामिल करा। ही इज एन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट फ्रॉम उज्जैन। और फिर हमने एक टीम बनाई अपनी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से लोगों को लेके, जिनको हम पे भरोसा था या हमें जिन पे भरोसा था कि जो वो काम कर सकते हैं, जो पहले कान्हा में या वन विहार में रहते हुए जिन्होंने ये काम किया था। और फिर हमने वो पूरा सेटअप तैयार करा जैसा कि अफ्रीका में करते हैं। वी वर वेरी ब्लेस्ड कि हमें हेलीकॉप्टर भी मिल गया, जो कि बहुत आसान काम नहीं है इंडिया जैसे। Because such a weird requirement to give somebody कि मैं हेलीकॉप्टर से नहीं, it was not weird. It may be very unusual for an Indian to hear this, but अफ्रीका में वो रोज करते हैं। आप did you have to convince anybody? So first I need to convince my boss, and then gentleman है मिस्टर मंदार महाजन, तो वो इंदौर एविएशन क्लब के प्रेसिडेंट हैं और एविएशन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो हम मिस्टर महाजन को रिक्वेस्ट करें कि अब हम तो आप दिलवा सकते हैं तो दिलवा दीजिए। तो उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो उन्होंने बात करी, फिर हेलीकॉप्टर हमको उनके क्रेडिट पे मिल गया। एविएशन फ्यूल का पैसा जरूर हमने दिया, बट हमने हेलीकॉप्टर का कोई चार्ज नहीं दिया। तो हमें केवल ये उस समय देखना था कि क्या हम पकड़ सकते हैं। हमने पकड़ा और बहुत सक्सेसफुली पकड़ा। पहले दिन फेल हो गया था? पहला दिन फेल हो गया। फिर हमने इम्प्रोवाइज करा, कुछ रिइंफोर्समेंट गेट लगाए वगाए, वो सब करके हमें सक्सेस मिला। मतलब मैं एक एक्सप्लेन कर दूं कि वो बोमा जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, जो फनल क्रिएट था, उसके एंड में एक ट्रक था। यस। जिसमें ये जो ब्लू बुल्स थे उनको आपको अंदर लाना था, एंड दे हैड टू माउंट इनटू द ट्रक without any sedation, without harming them, without even touching them. That was the challenge. Yes. तो पहली बार तो आपने घुड़सवार से किया? हमने सब कर लिया। हमने आदमी लगाए, फिर हमने आदमी और घुड़सवार लगाए, फिर हमने आदमी और हेलीकॉप्टर लगाया, फिर हमने मतलब जितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते थे। And credit to that pilot who flew so close to the. Yes, it was almost like I can touch it. Yes. I was on a kind of machan like thing, and it was scary. जो मैं कार्तिकेय जी बताया, he was there in the chopper और he was guiding him. हमने वो सक्सेसफुली किया। पर सर देखिए, मैं इस इवेंट में क्या ट्रांसफायर हुआ वो शायद लोग यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। Yes. मैं जानना चाहूंगा कि आपकी उस समय मनस्थिति कैसी थी? You were given, इसका मतलब आपको दिया था। Yes, I was given the mandate to do this. To do it, आपने किया है, पर इस लेवल पे शायद आपने भी तब तक नहीं किया था। Psychologically, were you nervous at that time? I was very nervous. How were you feeling? How did you meet that challenge? So first thing, I was very confident that we'll able to do this. मुझे उस कॉन्फिडेंस में कहीं कमी नहीं थी। जबकि आपको ब्लू बुल का नेचर नहीं, ब्लू बुल का नेचर मुझे पता है। अच्छा। ब्लू बुल का नेचर मुझे पता है, बट हमने जो कान्हा में बारहसिंगा या चीतल के लिए बोमा लगाए थे, उनके वॉल 2 to 300 मीटर होते थे। सो इट वॉज वेरी इजी टू हैंडल दैट ऑपरेशन। मचान पे एक आदमी बैठ के वायरलेस पे वो हमें पूरा, जैसे संजय की आंख, जैसे क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है, सब। यहाँ पे आप कहीं भी बैठ जाओ, आपको पूरा स्पान दिखेगा ही नहीं। सो वी वर रिलाइंग ऑन 3-4 पीपल जो कि हमें रिले में बताएंगे कि अब क्या हो रहा है, और एज पर द मैसेजेस गिवन बाय देम हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो कॉन्फिडेंस, yes, it was full confidence, but since we were doing something which we have not done before, so every day was a learning experience. हम कुछ करते थे, फिर लगता था ये गलत हुआ तो इसको ऐसा कर लें। पर सर आपके पास गलतियों का ज्यादा चांस भी तो नहीं था? नहीं था। आपको कितने दिन दिए थे? हमने 3 महीने लगाए। अच्छा, हाँ। जो बोमा का जो कैप्चर का फाइनल ऑपरेशन होता है वो शायद 10 मिनट चलता है। हाँ। पर उस 10 मिनट की तैयारी बहुत लंबी होती है। तो सर उसकी प्री प्लानिंग कैसे हुई? प्री प्लानिंग ऐसे हुई कि मुझे याद है
हम सबसे पहले जब एरा गांव गए, और मैं हमेशा मानता हूं कि लोगों के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है और लोग ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सो हमने रेस्ट हाउस या कहीं भी रुकने के सिवाय हमने सोचा मेरा गांव के स्कूल में ही जाके रुकेंगे। अच्छा। और तो हम मतलब गांव वालों को एक एटीज में होना है, उनको नहीं लगना है कि, क्योंकि आप देखिए हम कितनी भी अच्छी हिंदी बोल लेना, हम वो हिंदी नहीं बोलते जो गांव का आदमी बोलता है। तो जब यदि उनको लग गया कि ये सिर्फ आके बातें करके चला जाएगा, दे विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो हम हुआ कि पहले दिन तो हम स्कूल में ही रुकेंगे। हम स्कूल में ही रुके और रात भर गांव वालों से बात करते रहे। गांव वाले भी बड़े उत्साहित थे, मेरे आज भी उनसे संबंध है, आज भी उनके फोन आते हैं। तो वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी एरा की। और फिर 3 महीने तक हम लगातार जाते रहे, कई बार 15-15 दिन तक रुके। और ये ठीक 1 दिन पहले की बात है, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है उसके 1 दिन पहले की बात है। अच्छा। और हम फिर वो उस प्लेटू में गए और पूरा प्लेटू हमने घूमा। तो भूख लगने लगी, मैंने मेरे ड्राइवर को बोला कि ये पैसे लेके जाओ 100 रुपए का और ये कुछ नाश्ता ले आओ। तो मेरा ड्राइवर आके बोलता सर ये नोट तो अब नहीं चलेंगे। एंड इन द मिडिल ऑफ जंगल जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी, वी वर टोटली अनअवेयर कि रात को 8 बजे क्या हो चुका है। सो वी वर नॉट अवेयर। फिर हमें पता चला कि साहब ये अब हमारे पास जो करेंसी है वो नहीं चलेगी। तो खैर वो प्रॉब्लम नहीं थी, देवर फ्रेंड्स अराउंड, गांव वाले थे, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमने वो उस प्लेटू को पूरा देखा और हमने डिसाइड करा कि यस यहाँ ब्लू बुल हैं और वो खेतों में जाते हैं, तो हमको इनको यहाँ से पकड़ा जा सकता है, मतलब वेरी कंड्यूसिव सिचुएशन। अब दूसरा चैलेंज क्या था कि एक ये जो बोमा का सामान था, उस समय हमने जो कॉस्टिंग करी थी 2016 में, तो अदर देन द ट्रक एंड अदर देन द रैम्प, जो बाकी बोमा वॉल और बाकी सारी चीजें, दे वर कॉस्टिंग क्लोज टू 14 लाख रुपीज। अब एक ऐसी चीज जो हम पहली बार करने वाले हैं और उसके लिए हम 14 लाख खर्च कर दें। सो वी ऑप्टेड फॉर, उसी समय सिंहस्थ खत्म हुआ था, तो हमने सोचा कि सिंहस्थ के टेंट हाउस की वॉल ले लेते हैं। अच्छा। उसको थोड़ा सा रिमॉडल करेंगे और विल यूज देम एज अ बोमा वॉल। और वही टेंट हाउस की ही वॉल लाके हमने करा। तो वो टेंट हाउस वालों को टेंट लगाने की आदत है, पर उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक तरफ ये दीवार चल क्या रहा है। अफ्रीका में उतना बड़ा बोमा लगाने के लिए शायद वो 3 दिन लेंगे या 4 दिन लेंगे, हमारा बोमा लगने में 1.5 महीना लगा। बिकॉज देन एवरीबडी वाज क्लूलेस, आई वाज वेरी क्लियर ऑन माय माइंड कि मुझे क्या करना है, या कार्तिकेय वाज वेरी क्लियर, आपका विजन वाज क्लियर, विजन वाज वेरी क्लियर, देयर वाज नो डाउट इन विजन, बट टू ट्रांसलेट इनटू अ वर्क ऑन द ग्राउंड वाज नॉट दैट इजी। तो वो सारा गेस्टेशन पीरियड वाज वेरी लॉन्ग। और जब आप इतने दिनों तक काम करे, करीब 1.5 महीने तक वहां काम चला, तो देयर वाज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस, क्योंकि लेबर लगी हुई है, 100 लेबर लगी है और हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो देयर वाज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस कि ब्लू बुल वो प्लेटो छोड़ के ही चले गए। सो देन वी हैव टू कीप दैट एरिया अबंडेंट फॉर अबाउट अ मंथ। अच्छा, कि फिर से वो अट्रैक्ट होके आ जाए, तो फिर वो वहां पे हम चारा डाल रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, वो सब कर रहे हैं ताकि वो ल्योर होके वापस आए। तो दैट्स हाउ इट टुक अबाउट 2.5 months टू गेट दैट एरिया रेडी। और फिर वो आखिरी के 15 दिन फॉर दैट। यस। बट यहाँ मैं एक, आपने जो बात तो आपने कही और आपको पता होगा, पर बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नॉट टच एन एनिमल। सो आप ऐसे समझो कि ये जितने भी वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, हर्बीवोर होते हैं, इनको बहुत आदत होती है चेज होने की। सो कभी टाइगर आया दौड़ गए, कभी लेपर्ड आया दौड़ गए, कभी वाइल्ड डॉग आया दौड़ गए, कभी इंसान आया दौड़ गए। सो दे आर गुड एट रनिंग, दे आर गुड एट दिस। बट द मोमेंट समथिंग टचेस देम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देयर लास्ट डे। टाइगर यदि एक डियर को टच करेगा, सो कंडीशन कॉल्ड कैप्चर मायोपैथी। तो जब भी आप ये किसी हर्बीवोर एनिमल को टच करते हो, तो उसकी कैप्चर मायोपैथी सेट इन होने लगती है, उसकी बॉडी में प्रोटीन बनने, लैक्टिक एसिड बनने लगता है बहुत सारा, और वो लैक्टिक एसिड उसके जॉइंट्स पे बनता है, वो वीक होने लगता है और इतना बनता है कि उसका पूरा मसल्स को वो डिकम्पोज करने लगता है और 3-4 दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। तो आपने बहुत किस्से सुने होंगे कि वो चीतल को रेस्क्यू करके लाए, ऑफिस में 2 दिन रखे, उसकी डेथ हो गई। तो वो 2 दिन में उसकी कैप्चर मायोपैथी के कारण डेथ हो गई। तो यदि आपको किसी एनिमल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो बिना उसको अफेक्ट करे उसको आप ट्रैंकुलाइज कर दो, और या फिर आप उसको टच मत करो, बिना टच करे आप ले जाओ। तो आप दौड़ने के लिए तो वो कई किलोमीटर दौड़ जाएंगे बिना अफेक्ट हुए। तो इसीलिए बोमा में हम उनको टच नहीं करते हैं। अच्छा, टाइगर या लेपर्ड या ऐसा जानवर जो सॉलिटरी है, तो आपने उसको डांट कर दिया, ले गए। पर जहां आपको 100 चीतल ले जाने हैं, आप कितनों को डांट कर सकते हो? तो वो केमिकल इज नॉट एन ऑप्शन। फिर बीच में हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करे, हुआ कि इनको कोई दवाई दे दो खाने में तो इनको नींद आ जाएगी। अच्छा। तो केलों में भर भर के डाइजापाम और ऐसी दवाएं जो होती हैं, शायद मैं दवा का नाम सही नहीं बता रहा हूँ, बट वो दवाएं जो सेडेटिव का काम करती हैं, वो केलों में भर भर के दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आया कि बोमा इज अ ट्रस्टेड मेथड जो अफ्रीका में करते हैं, एंड बिकॉज वी डोंट टच देम, सो कैप्चर मायोपैथी सेट नहीं होगा। और प्राउडली आई कैन से अभी मैं पेंच में हूँ और लगभग हम हर साल 1000 चीतल यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। 2017 से अभी तक 4500 चीतल शिफ्ट कर चुके हैं नौरादेही में, सतपुड़ा में, एंड विद वेरी फ्यू मोर्टेलिटी, very few. Wow, well, so much is happening that we don't even know about. Yes.
सर ये जो काम हुआ, इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर टीम. आज Yes. आपको अवार्ड मिला, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, Thank you. बट योर टीम केम टुगेदर एंड दे कट द केक टुगेदर. मैंने बाद में उनसे पूछा भी कि ये अवार्ड किस चीज़ का है. तो सर थोड़ा मुझे आप अवार्ड के बारे में बताइए, एंड उससे आगे मुझे ये बताइए, फ्रॉम टर्निंग देम फ्रॉम वर्कर्स टू मोटिवेटेड सोल्स, ये कैसे होता है, आप कैसे करते हैं? मैं कैसे करता हूँ? पर पहले अवार्ड के बारे में बताइए. तो वो अवार्ड मोटिवेशन के लिए ही मिला है, तो दोनों चीजें जुड़ी हुई है. सो मुझे, चूंकि अब आप देख रहे हैं कि मुझे एक मुद्दत हो गया इन जंगलों में काम करते और इन लोगों के साथ काम करते हुए, और एक जो मैं बहुत मेजर चेंज देख रहा हूँ जब हम उन कर्मचारियों को देखते थे जो 70s और 80s में आए थे. मतलब व्हेन आई वाज इन माय 30s बट मोस्ट ऑफ माय टीम वाज इन देयर 40 एंड 50s. सो वो इन्हीं गांव के, इन्हीं जंगलों के लोग थे और वो डेली वेजेस करते हुए फॉरेस्ट गार्ड बन गए. And they are very okay with their surroundings. They were very okay with having less than their peer in the cities who have a lot more. But अभी जो नया जनरेशन आ रहा है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जमाना है, जो एग्जाम अच्छा लिखेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा. So many of my forest guards come from a very urbanized background. Many of my forest guards are as educated, as efficient as any of the very senior officer. And बस वो एक अपॉर्चुनिटी की बात है, उनको मिल गई तो वो चले गए और उनको नहीं मिली तो नहीं चले वो. So जब वैसा फॉरेस्ट गार्ड या वैसा डेली वेजेस का आदमी जंगल में आ जाता है, उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता ना तो कुछ और कर लेता, या जो आपने एक सोशल चैलेंजेस की बात, ट्रॉमा की बात करते, वो सारी चीज़ें सेट इन होने लगती हैं. तो जब मैं 2 साल पहले आया, 2.5 साल हो गए मुझे पेंच में, तो वो मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया. एक थके हुए सिपाहियों के साथ आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हो. तो मुझे क्लियर था कि until unless आई विल मोटिवेट देम, आई एम गोइंग टू लूज दिस बैटल. क्योंकि ये जो कंजर्वेशन की लड़ाई है ना, बहुत कॉन्टिन्यूस है. मैं ये नहीं कह सकता कि अब तो मेरा प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, अब कुछ नहीं होगा, या एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. नथिंग इज अंडर कंट्रोल. वो तो एक रोज की लड़ाई है जो मुझे लड़नी है, हम सबको लड़नी है. सो वहां से हमने सोचना शुरू करा. तो एक मुझे थॉट आया कि हर किसी को हीरोइक एक्ट बहुत अच्छा लगता है. सो वी डिड अ कॉम्पिटिशन कॉल अ डे इन लाइफ ऑफ वन रक्षक. तो एक तो क्या था कि बहुत सारे आजकल बडिंग फिल्म मेकर हैं जो गाड़ी में बैठ के फोटो खींचते हैं, बहुत रोजी लगता है, बट जंगल में काम करना उतना रोजी नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ यू. सो मुझे लगा कि इनके थ्रू दुनिया जानेगी कि फॉरेस्ट गार्ड क्या करता है. और उससे भी बड़ी बात है कि फॉरेस्ट गार्ड जब खुद को एक बड़े स्क्रीन में देखेगा, भले ही वो 3 मिनट के लिए हो, भले ही वो कोई धर्मा प्रोडक्शन की मूवी नहीं हो, MP टाइगर फाउंडेशन और पेज टाइगर कोलैबोरेटेड एफर्ट हो, पर खुद को बड़े स्क्रीन पे अच्छा देखना अच्छा लगता है. सो हमने कुछ 16 फिल्म बनी, उसके बहुत फायदे हुए. 2 तो जो एक्सपेक्टेड फायदे थे, दुनिया को पता चला कि एक फॉरेस्ट गार्ड की अवेयरनेस आई, और ये भी था कि वो खुद बहुत मोटिवेटेड होगा. पर जो मेरे बाकी फॉरेस्ट गार्ड, दोज हु वर वेरी रिलक्टेंट टू बी पार्ट ऑफ दिस, उनको लगा यार ये अपॉर्चुनिटी तो हमसे मिस हो गई. तो वो उनको मोटिवेशन आया. और फिर उसके बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि कैमरा, इट्स अ वेरी इफेक्टिव मीडियम बट नॉट अ वेरी चीप मीडियम. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम. यू नीड अ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा, और फिर एडिटिंग, साउंड, कलरिंग. नहीं, ये बहुत अच्छा मीडियम है और हम इसको और भी ज्यादा यूज करना चाहेंगे. सो बट तो वहां से वो चीज की शुरुआत हुई और हमने फिर एक स्टोरी राइटिंग करी ऑलमोस्ट सिमिलर मोड पे कि आप फॉरेस्ट गार्ड के साथ 2 दिन रहिए, उसकी कहानी लिखिए. अनफॉर्चुनेटली वो बुक हमारी आ नहीं पाई है ड्यू टू सम और अदर रीजन, बट उससे भी हमारे फॉरेस्ट गार्ड को लगा कि मेरी कहानी भी कोई सुनना चाहता है. मेरे पास भी कुछ बोरिंग स्टफ नहीं है, मैं भी कुछ हूँ, सेल्फ एस्टीम्ड. फिर वहां से मुझे दूसरी चीज ये लगी कि जो आपने पगमार्क वाली बात करी थी कि देखो एक इतना अच्छा क्राफ्ट था, हम एक अच्छी चीज की तरफ बढ़ गए, पर पुरानी अच्छी को भी तो बोथ कैन गो साइड बाय साइड. तो फिर हमने वो उसको रिवाइव करा, PIP और प्लास्टर कास्ट को. तो फिर मैं जब कैंप में जाता हूँ, स्टाफ दौड़ के आके दिखाता है सब कल ही ये करा, लंगड़ी आई थी और ये तो पाटदेव दिखी थी. सो वो इमोशन होता है ना, वो उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के टुकड़े में झलकता है वो इमोशन. तो ऐसा करके मुझे लगा कि अप्रिसिएशन हर किसी को अच्छा लगता है, पर हर कोई एक ही काम तो नहीं कर सकता है, बहुत डाइवर्स इंटरेस्ट है. तो हमने अलग अलग हर महीने कंपटीशन शुरू करी. तो और कुछ ऐसी भी कंपटीशन थी जो हमारे जॉब से जुड़ी थी, जो जैसे ये PIP बनाना या प्लास्टर कास्ट, तो ये हमारा जॉब का हिस्सा है. हर्बेरियम बनाना ये हमारे जॉब का हिस्सा है. बट हमने कुकिंग कंपटीशन भी करी, क्योंकि
वो हमारे फॉरेस्ट गार्ड तो जंगल के अंदर ही रहते हैं, रोज अपना खाना खुद बनाते हैं, तो देखा तो जाए ज्यादा टेस्टी कौन बनाता है। और इसी फर्स्ट जून को हमने कुकिंग कंपटीशन करी, तो उसका हमारे जॉब से रिलेशन नहीं है, बट उस कुकिंग कंपटीशन में मैंने देखा कि कितना टैलेंट है। एंड आई कैन वाउच मेनी ऑफ द रेसिपीज विच वर प्रेजेंटेड, वो किसी भी बहुत अच्छे स्टार होटल को मात करेंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे एक डिप्टी रेंजर ने जो केक बेक किया, वो शायद वन ऑफ द बेस्ट बेकरी में भी वो बेक नहीं हो सकती, और जंगल में आप सोचते नहीं हो कि कोई केक बेक करना जानता होगा। तो उस तरह से करके लगातार सोचते गए कि क्या डिफरेंट करें। अभी फिर मुझे एक और चैलेंज, जो हम एमएस टाइप की बात कर रहे थे, जब हमने अपने एमएस टाइप का डेटा एनालाइज करा, तो हमें लगा कि हमारे लोग गश्ती तो कर रहे हैं, पर वो गश्ती इस पेट्रोलिंग, पर हम उस पेट्रोलिंग को और प्रभावी और इफेक्टिव बना सकते हैं यदि वो अपनी नजर को ज्यादा वाइड कर लें और ज्यादा बारीक कर लें, तो एक्टिव पेट्रोलिंग, ज्यादा एक्टिव हो जाए। तो जस्ट वॉक करना, और एक वॉक विद एम कि मुझे देखो कि क्राइम कहाँ है, कुछ डिफरेंस कहाँ है। तो आपकी सबसे अच्छी नजर होती है फोटोग्राफर की, वो हमेशा कोई फ्रेम तलाशता रहता है। तो हमने अपने फॉरेस्ट गार्ड्स और डेली जो भी चाहते हैं उनको हमने कैमरा की ट्रेनिंग कराई, हमने उन्हें फिल्म बनाने की ट्रेनिंग कराई, ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग कराई, और फिर बटरफ्लाई के में घुसा दिया। अब बटरफ्लाई इतना छोटा क्रीचर है और बटरफ्लाई का फोटो लेना आसान काम नहीं है, पर अभी बहुत जल्दी हम एक एग्जीबिशन करने वाले हैं हमारे लोगों की बटरफ्लाई फोटोग्राफ्स की। और जब वो बटरफ्लाई में घुसे तो इंसेक्ट में घुस गए। अब उसी पेट्रोलिंग में जो वो मैक्रो साइज की चीजें देखते थे, अब वो माइक्रो में देखते हैं। उन्हें मालूम है कि कोई एक ऐसी बटरफ्लाई मिल सकती है जो शायद अभी तक पेंच में रिपोर्टेड नहीं हो, और ऐसा हुआ भी। लास्ट ईयर मेरे फॉरेस्ट गार्ड ने, जो हमारी बटरफ्लाई कंपटीशन थी, करीब 6 ऐसी स्पीशीज रिपोर्ट करी जो पेंच में आज तक रिपोर्टेड नहीं है। और यहाँ मैं ये बताऊं, जूलॉजिकल सर्वे कर चुका है, और पेंच में 3 बहुत ही अच्छे वाइल्ड लाइफर ऑफिसर रहे जो बटरफ्लाई में भी बहुत अच्छे थे। मिस्टर डुंगरियाल हुए यहाँ फील्ड डायरेक्टर थे, मिस्टर असीम श्रीवास्तव जो हमारे अभी हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं, एंड मिस्टर शुभरंजन सेन हमारे पीसीसीएफ हैं। तो ये मैंने कहा ना कि कोई एक ऑफिसर जंगल को उतना करीब से नहीं देख सकता है जो फॉरेस्ट गार्ड या वॉचर देखता है, क्योंकि वो बहुत माइक्रोन्स में देखता है। और इस तरह से धीरे धीरे ये कुछ कंपटीशन करा के, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे के, मेरा एक और बहुत बिलीव है कि पब्लिक स्पीकिंग से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं हमेशा ये अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि इनको पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले। और अभी हमने टाइगर डे पे सब लोगों ने अलग अलग एक्टिविटी करी। हमारे लैंडस्केप में 123 टाइगर्स हैं, तो हमने डिसाइड करा कि हम 123 स्कूल्स में जाएंगे और हम टॉक डिलीवर करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, और यही लोग जाके बोलेंगे। सो इनको भी बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि बच्चे तो फिर देखते हैं कि हमें कौन क्या बता रहा है, और टाइगर के बारे में सुनना देखना सबको अच्छा लगता है। तो ये मैं देखता था कि जब वो टॉक दे के आते थे और जब वो फोटोग्राफ शेयर करते थे, एंड उनमें वो एक अलग ही आपको एनर्जी दिखती थी। और जो मैंने आपको बताया, जो हमने इवनिंग विद जंगल वाला जो हम डेली कर रहे हैं, वो इन्हीं के भरोसे कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर मैं या मेरा रेंज ऑफिसर रोज नहीं जा सकता है। जब हमें ऑल 365 डेज करना है तो हमें पूरी टीम झोंकना पड़ेगी, और लगभग अभी मैंने 42 लोग आइडेंटिफाई करे हुए हैं। तो हम यदि रेंज ऑफिसर एंड अबव देखें तो हम 12 लोग हैं, और 30 लोग हैं जो फॉरेस्ट गार्ड है, या डेली वेजेस है, या डेप्यूटी रेंजर हैं, दोज हु विल गोइंग टू डिलीवर दैट टॉक फॉर द टूरिस्ट। सर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। श्योर। एक ऐसे टॉपिक पे आते हैं जो शायद बहुत अच्छा नहीं है, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड अगर एरागांव की स्टोरी वाज लाइक साईफाई, मतलब मैं साईफाई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि काउबॉयज भी है और हेलीकॉप्टर भी है। यस यस। तो अगर इफ इट वाज एन एडवेंचर स्टोरी, दिस वन इज अ हॉरर फिल्म, व्हिच इज, और आई थिंक आपका दिसंबर महीने से तो कुछ लगा हुआ है क्योंकि whatever happened in Sivni in I think 13 December 2022 was it? Yeah, date I don't remember, place I remember. I'm sure what you're going to talk about is the Gotegaon. Yes sir, तो जो उस दिन हुआ, बहुत सारी, और आप बहुत उस समय फ्रेशली आप पेज का आपने रेंज लिए थे, मे बी 6-7 months previous to that आपने 6 months, and that too in between for good 3 months I was out for a training. So effectively बहुत छोटा टेन्योर हुआ था उस समय। और इतना मतलब मैं बड़ा तो आई मीन आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे, बट दैट वाज इन इटसेल्फ, जो मैंने आपका उसका नरेशन पढ़ा, इट वाज मतलब थ्रिलिंग, रिविटिंग। मतलब मैं अगर बैठ के बच्चों को कहानियां सुनाऊं तो वो नानी
सिनेमा की कहानी बन सकती है। आप थोड़ा वो कहानी एक बार बताएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहानी एक जर्नलिस्ट के थ्रू एक फैक्चुअल वे में तो लोगों को पहुंची है, बट उसका एक नरेशन मिसिंग है। आप उसकी एक स्टोरी अगर वो सुना सके। नहीं, स्टोरी कुछ भी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है हम लोगों के लिए ऑड आवर्स में खबर आना कि सो एंड सो जगह पे कोई एक मिसहैप हो गया है। सो मॉर्निंग अबाउट 6:30 आई गॉट कॉल फ्रॉम माय एसीएफ आशीष कि सर एक लेपर्ड ने एक गोंडेगांव में मार दिया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये गोंडेगांव कहाँ है। लेपर्ड था कि टाइगर? द फर्स्ट न्यूज वाज अबाउट लेपर्ड। Okay, फर्स्ट न्यूज अबाउट लेपर्ड। अब ये मैंने, यदि आप वो मैंने उस समय जो ट्विटर पे एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स लिखा था, तो ये बड़ा ट्रिवियल होता है फॉर अ फॉरेस्ट ऑफिसर कि या मैं कहूँ कि जब तक पुलिस फोर्स नहीं होगी या सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, या मैं सोचूं कि मैं तो तुरंत पहुंचूं and whatever best can be done should be done। तो खैर हमेशा जो दूसरी बात है वही मुझे सही लगती है। एंड आई रश टू द स्पॉट। मेरे बॉस वो मुझसे भी नए थे क्योंकि उनको जो ज्वाइन करे 1 महीना ही हुआ था, वो भी यहीं पे थे जहां हम आज ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कर्मजिरी में। एंड उनको मैंने मैसेज दिया कि सर ऐसा इंसिडेंस हुआ एंड आई एम रशिंग टू द स्पॉट एंड यू ऑल्सो प्लीज कम। और हम मौके पे पहुंचे और मुझे कुछ 40 मिनट लगा होगा यहाँ से पहुंचने में। सो आई वॉज देयर बाई 7:30, बट तब तक भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। और भीड़ बस भीड़ होती है, भीड़ का कोई एक कोई लीडर नहीं होता है। भीड़ कुछ बहुत अजीब सी तासीर होती है भीड़ की, मॉब मेंटालिटी जिसको कहते हैं। और हमें सिखाया जाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो मॉब में हमें कहा जाता है कि अपनी ऑफिशियल गाड़ी वगैरह आप छोड़ के जाओ, क्योंकि आप तो बच सकते हो, गाड़ी तो एक फिजिकल एंटिटी है ना, वो डैमेज हो सकती है। सो हमने गाड़ी वाड़ी काफी दूर रख दी और हम पैदल गए। जब तक गए तो हमने देखा टाइगर सामने बैठा था, डेड बॉडी बगल में पड़ी हुई थी और घर भी वहीं था, घर के पिछवाड़े में ये इंसिडेंस हुआ था। टॉयलेट था, मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट बीइंग देयर वाज अ टॉयलेट द मैन वाज डिफिकेटिंग आउटसाइड एंड टाइगर फेल्ट दैट इट इज सम काइंड ऑफ वाइल्ड प्रे और आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बट देन टाइगर, और तब तक जो आवाज हुई तो टाइगर वहीं पे एक बैम्बू ग्रूव था उसी में बैठा हुआ था। वी कैन रियली सी टाइगर वाज नॉट इवन 50 feet away from me, dead body was about 10-12 feet away from me and that house बैकयार्ड वॉज जस्ट बिहाइंड मी। और तब तक 1,500-2,000 की भीड़ थी। 1,500-2,000 की भीड़ हो चुकी थी। और तब तक डॉक्टर मेरे पहुंच गए। डॉक्टर को सिवनी से आना था। जब डॉक्टर को आना है तो उन्होंने अपनी ड्रग्स देखनी है, डार्ट देखना है, टेली इंजेक्ट देखना है, टीम देखनी है, ट्रक देखना है, पिंजरा देखना है, जाली देखना है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने केवल स्टेथोस्कोप उठाया और चल दिए। सो डॉक्टर कुछ 15-20 मिनट मेरे बाद पहुंचे और मेरे बॉस पहुंच गए थे। मेरी टीम जो है रेंज की पूरी वो पहुंच चुकी थी। एंड वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि डार्टिंग का चैलेंज क्या होता है। डार्टिंग का चैलेंज पहला ये होता है कि आप एनिमल को कहीं भी नहीं मार सकते हो, दैट वुड बी फेटल। सो नॉर्मली आप रंप पे मारते हो, पुट्ठे पे मारते हो उसकी। सो टाइगर का रंप पोर्शन में भी अबाउट स्क्वायर फीट, सो 1 स्क्वायर फीट इलाके में मारना है। और आपको गोली नहीं मारनी है, आपको डार्ट मारना है। डार्ट एक, समझ लीजिए, प्लास्टिक का जो इंजेक्शन होता है वो होता है, एक ट्रेजेक्ट्री होती है। और यदि एक ग्रास का ब्लेड भी टच हो जाए तो वो डिविएट हो जाएगा। ओके, सो आपको वो एंगल देखना है कि जहां, तो यदि कोई गोली मारना हो ना किसी जानवर को तो मार दो, वो ग्रास को स्ट्रेट जाएगा, ये तो स्ट्रेट नहीं जाएगा। एंड योर डॉक्टर इज नॉट एन ओलंपियन, वो डॉक्टर है, उसको ट्रेनिंग दे के सिखाया गया है, बट इट इज डिफिकल्ट। तो हाथी पे करना तो और भी मुश्किल होता है। हाथी खैर वहां नहीं आ सकता था, बिकॉज एलिफेंट इज मूविंग, एनिमल इज मूविंग एंड यू आर ऑल्सो मूविंग एंड यू आर ट्राइंग टू डार्ट एनिमल। सो इट्स अ चैलेंज। बट वहां का ये चैलेंज था कि इवन इफ द एनिमल वॉज विजिबल 50 feet अवे, इट वॉज इन अ बैम्बू का जो पूरा ग्रूव होता है उसके नीचे था, वहां बहुत सारा बांस और घास था। सो डॉक्टर को जब तक कि वो करीब नहीं चले जाए और एंगल उसको वैसा नहीं मिल जाए वो नहीं कर सकता था। बट भीड़ होती है, भीड़ वो समझने को तैयार नहीं थी। उनको लग रहा था कि हम गलत कर रहे हैं या हम सही नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता थी, जैसे ही आप टाइगर को डार्ट करते हो, बेहोश होने में उसको 10 से 15 मिनट लगते। सो 10 से 15 मिनट में टाइगर क्या करेगा आपको नहीं मालूम है। नॉर्मली उसको जो फिजिकल हिट होता है, उस हिट के कारण वो किसी भी डायरेक्शन में भागता है। सो उस जगह के 3 तरफ लोग खड़े थे और चौथे तरफ खुला रास्ता था जो कि एक नाले की तरफ जाता था। सो हमारे लिए चैलेंज था लोगों को सेव करना, क्योंकि हम टाइगर केवल बचाने नहीं गए थे। कोई भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आपके लिए आदमी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि जानवर। रादर मैं हमेशा कहता हूं आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल से। सो अब हम लोगों को कैसे सेव करें? यदि टाइगर डार्ट लगने के बाद भीड़ की तरफ चले जाए तो उसे कैसे सेव किया जाए? सो द ओनली वे आउट वॉज, आज लोग मुझे कह सकते हैं कि इट वॉज एन स्टूपिड डिसीजन, बट आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस।
मैंने अपनी गाड़ियां जो वहां से 3 किलोमीटर दूर सेफ खड़ी हुई थी, मैंने उस टाइगर और भीड़ के बीच में अपनी गाड़ियां लगा दी, सो दैट कि यदि टाइगर उठ के भीड़ की तरफ भी जाए तो वो मेरी गाड़ियों को क्रॉस नहीं करेगा। तो मेरी गाड़ी थी, मेरे फील्ड डायरेक्टर की गाड़ी थी, मेरे बहुत सारे डॉक्टर की गाड़ी थी, रेंज ऑफिसर की गाड़ी, 6-7 गाड़ियां थी। तो वी क्रिएटेड दैट आर्टिफिशियल वॉल यूजिंग अवर व्हीकल, और इसीलिए वो हमारी गाड़ी। आपको कोई ट्रेनिंग थी कि आपका खुद का आइडिया था? नहीं, अब उस समय और कोई चीज ही नहीं थी। आपको वॉल एक बनानी है, आपके पास गांव वाले खाट लाके तो देने नहीं वाले, उनको तो मजमा करना है वहां पे। सो द ओनली ऑप्शन यू लेफ्ट विद इज कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को डिविएट करो, टेक अ चांस। तो हमने वो चांस लिया कि हमने वॉल बना दी। एक गाड़ी में डॉक्टर साहब बैठे, वो डॉक्टर साहब बैठ के टाइगर के पास गए। टाइगर इतना डरा हुआ था, इट वॉज लाइक बाहर, और भीड़ तो हर घंटे हर मिनट, घंटे नहीं हर मिनट बढ़ रही थी। सो बाय 9 आई थिंक दे वर मोर देन 5000 क्राउड। और डॉक्टर ने जैसे ही डांट करा, वो बिकॉज ऑफ दोज बैम्बू प्लांट, उसको डांट लगा ही नहीं और टाइगर भागा। अब टाइगर भागा तो इट वॉज अ लकी टाइगर और स्मार्ट टाइगर, वो उस तरफ भागा जिस तरफ पब्लिक नहीं थी। लोगों को ये लगा कि शायद हमने उसको जानबूझ के भगा दिया है, और बट हमने बाद में इंक्वायरी करी तो पता चला कि कुछ 6 महीने पहले हमने उसी गांव से एक वाइल्ड पिग के पोचिंग केस में कुछ लोगों को अरेस्ट करा था। वही लोग सबसे आगे लोगों को भड़काने में थे, और फिर गाड़ियां टूटी, मेरे वेट को चोट लगी और वो तमाम चीजें हुई। बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी सपोर्टिव, वो आ गया, और थैंकफुली अब डॉक्टर मेरे बहुत फिट और हेल्दी हैं, थोड़ा बहुत हैं उसके ट्रेसेस, आप अभी उनसे मिले, बट स्टिल उसके बाद उन्होंने ऐसे 10 ऑपरेशन और कर लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां वो रुक गए हैं, और हमारी गाड़ियां डैमेज हुई, बन गई या पूरी ठीक से नहीं बन पाई। बट देखिए, मेरे लिए तो लेसन था, क्योंकि जो मैंने बात कहा ना कि मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि वी वर लैकिंग दैट डायलॉग, वो डायलॉग नहीं था। और वहां से ही शायद वो एक थॉट प्रोसेस भी आया कि रोज इनके साथ बात करिए। वो अपने उस दोस्त को जिसने उसके बच्चे की नौकरी लगवाई है वो नहीं मार पाएंगे, मुश्किल है। तो वो करके हमने बहुत सारा, जो हम जब बात करते वोकेशनल ट्रेनिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग या तमाम, अभी हम बहुत मास स्केल पे एक चीज कर रहे हैं। लोकल लेवल पे उसको झटका मशीन बोलते हैं, बट इट इज मोर लाइक अ पावर फेंस, अ लो कॉस्ट पावर फेंस, क्योंकि इनके खेतों में क्रॉप रेडिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो आप ये पॉपुलेशन 60,000 पॉपुलेशन और 40,000 के लगभग कैटल की बात कह रहे थे, तो उन खेतों में क्रॉप रेडिंग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और कई बार लोग लाइव नेकेड वायर लगा देते हैं, तो वो तो एनिमल के लिए बहुत खतरा होता है, कई बार इंसान भी मर जाते हैं। तो उसके चीपर ऑप्शन है, वो हम दे रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि उनको अब अपनी क्रॉप ज्यादा मिल पा रही है, उसका जो क्रॉप रेड हो जाती है, आप एक गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, और वो गुडविल पे कर रही है हमें। मैं कह सकता हूं कि गोंडेगांव वाज द लास्ट इंसिडेंस। उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कई बार आई। अभी लास्ट मंथ ही हमने टूरिया गांव के एक रिजॉर्ट से एक टाइगर कप को रेस्क्यू किया, बट देयर वाज नो सच इंसिडेंस हैपेंड। लोग हमने बताया कि आप दूर रहिए, और दे वर टचवुड दे वर रेडी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो है, मेरा बहुत विश्वास है लोगों पे, और वो विश्वास तोड़ते नहीं है, मुझे मालूम है। सर, अभी एक बार के लिए इस कहानी पे एक बार फिर से आते हैं। जी प्लीज। टाइगर भागा, हाँ, उस रात क्या हुआ, वो रात कैसे बीती, और अगले दिन सुबह आप लोगों ने जो कोम्बिंग एक्सरसाइज करी, और मुझे ना बहुत ही मजेदार था वो, मेरे लिए बहुत रोचक था कि आपने कॉल किया, कान्हा से हाथी आ गए, आई थिंक सतपुड़ा से, नहीं हमारे ही हाथी आए, हाँ हाथी आ गए, और डॉग स्निफर्स आ गए, एंड अगले दिन यू टर्न दैट ओवरनाइट, उस डिप्रेशन को भी ओवरकम करना। यस, देखिए ना, आप जिस जॉब में मैं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं सियापा करने का बहुत टाइम नहीं है। ओके, आप सोचिए कि वो जो इंसिडेंस हुआ गोंडेगांव का, वो सुबह करीब 10 बजे हुआ, और 10 से 12 बजे तक थिंग्स वर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल फॉर अस। लेकिन 1 बजे हम अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि हमको शाम को क्या करना है, एंड नॉट ओनली मी, होल ऑफ माई टीम वॉज विद मी। किसी ने ये नहीं कहा, डॉक्टर जरूर हमारे साथ नहीं थे, वो ट्रीटमेंट के लिए हम उनको नागपुर भेज चुके थे, बट देन एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर एवरीबडी वॉज देयर। कान्हा से हमने डॉक्टर को बुलाने का बोल दिया था कि यदि टाइगर को डांट करना पड़ेगा तो कान्हा से डॉक्टर आ जाएंगे। और मुझे याद है कि उस समय WCT के एक डॉक्टर प्रशांत देशमुख, वो भोपाल में रहते हैं, और उनको भी हमने रिक्वेस्ट करा था, वो भी आ गए थे। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के भी डॉक्टर आ गए थे। सो दुख मनाने का या ये सोचने का कि बहुत गलत हो गया, देयर वाज नो टाइम। और हमने शाम को भी स्कैनिंग करी, ड्रोन से स्कैनिंग करी, पगमार्क ट्रेस करे, और नेक्स्ट डे भी करते रहे। पर चूंकि जिस जगह ये इंसिडेंस हुआ था, जंगल बहुत दूर नहीं था, जंगल वाज अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम देयर, और वो टाइगर एक बार जंगल के अंदर चला गया।
Tiger it was smart difficult. था. Tiger is, they are always smart. They are always smart than we human. And they avoid conflict. They avoid conflict. अब देखिए एक्सीडेंट में हमेशा हमारे जिले के लोगों की कई बार बात होती है, तो मैं कहता हूँ कि NH44 पे जो एक्सीडेंट होते हैं लगभग आप देखिएगा रोज एक एक्सीडेंट होता है. उसके मुकाबले में टाइगर से एक्सीडेंट बहुत कम है. Snake, one of the major reason for human death in this district and across Madhya Pradesh and India. उसके मुकाबले टाइगर तो इतना वेल बिहेव्ड है कि आप थोड़े से कुछ प्रिकॉशंस ले लें. वो जो हमारे सयाने मोगली की साइकिल पे गाना बजता है कि आप अंधेरे में जा रहे हो तो थोड़ी आवाज करते हुए चले जाओ, अपने साथ लाइट रख लो, अपने 2-3 दोस्तों के साथ जाओ, अकेले मत जाओ पैदल. ये 2-3-4 आप प्रिकॉशन रख लेना तो इंसिडेंस नहीं होगा. आप देखिए कि टाइगर का यदि टेंडेंसी एग्रेशन होता तो ये मेरे 800 लोग जो रोज जंगल में पैदल चलते हैं इनकी फोटोग्राफ लगी हुई होती. बट ऐसा नहीं है. हमें सिखाया जाता है कि जंगल में आप क्या प्रिकॉशन ले, और वो प्रिकॉशन आप लेंगे तो टाइगर या फॉर दैट मैटर कोई भी एनिमल आप पे अटैक नहीं करेगा. सर उस कहानी में एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे आप आई थिंक दौड़ पड़े टाइगर के पीछे, गाड़ी सर की मिश्रा सर, डॉक्टर मिश्रा नहीं टाइगर के पीछे दौड़े, मतलब टाइगर के पीछे नहीं दौड़े, बिकॉज देखिए ये सब कुछ फ्लैश ऑफ अ सेकंड में हो रहा था. सो द मोमेंट डॉक्टर मिश्रा ने डार्ट करा और टाइगर भागा, आपको आवाज आई शॉट, हमें शॉट की आवाज आई, भीड़ थी, वी वर नॉट नोइंग कि डार्ट उसको लगा है या नहीं लगा है. आपको थोड़ा सा आशंका एक थी आपके मन में? आपको नहीं, मुझे नहीं मालूम था. मुझे नहीं मालूम था कि उसको डार्ट लगा या नहीं लगा, बिकॉज वी वर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ मॉब ऑल साइड एंड डॉक्टर वाज लिटिल क्लोज टू द टाइगर. वो टाइगर के पास में था. मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर ने उस समय देखा भी कि लगा या नहीं लगा, बट मुझे नहीं मालूम था. बट जिस दिशा में टाइगर गया मैं ये सोच के दौड़ा उस तरफ कि यदि इसे डार्ट लग गया है तो ये कहाँ डाउन होगा, हमें वहां जाना है. क्योंकि भीड़ कई बार सोचती है अब टाइगर डाउन हो गया तो हम क्लोज जा सकते हैं, वो भी पर बहुत रिस्की होता है. टाइगर डाउन तो होता है पर उसके सेंसेस अलाइव होते हैं. यदि आप जरा भी उसको बुली करो वो एक भी पंजा मार देगा, इट विल गोइंग टू बी अ लीथल. सो मैं इसलिए टाइगर की तरफ तो नहीं बट लगभग उस दिशा में दौड़ा कि मुझे दिख सके कि टाइगर किधर गया है. पर सर ये फिर भी बहुत डेयरिंग की बात है. मतलब डेयरिंग और स्टूपिड के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर है. आप इस पूरी कहानी को ऐसे बता रहे हैं जैसे मतलब ये तो रूटीन है कि हाँ वो टाइगर डाउन हुआ और मैं दौड़ पड़ा वहां पे. नहीं बट शुभंकर मेरा यकीन माने कि रूटीन ही है. यदि टाइगर डाउन होता है ना, और खास करके ऐसे मॉब के बीच में, तो यही करना पड़ता है. मैं नहीं करता तो कोई और करता. नहीं पर आपने किया, वो बहुत बड़ी बात है. नहीं बट वी वर लेफ्ट विद नो चॉइस. आप सोचिए कि उस 5000 की भीड़ में यदि एक भी आदमी या बच्चे को चोट भी लग जाती, न केवल मैं, मेरी पूरी टीम क्रूसिफाई हो जाती. हमें कहा जाता कि आप नेग्लिजेंट है, आपने पब्लिक का ध्यान नहीं रखा. आज हमारी गाड़ी टूटी, गाड़ी रिपेयर हो गई, चोट लगी, चोट का इलाज हो गया. आप याद रखे हो, आई एम रियली थैंकफुल. बहुत सारे लोगों ने इस चीज को याद रखा है. हमने खुद अपनी गलतियों से सीखा. यदि हमारी चूक कोई हुई है तो हम सीखें, बट कोई खास फर्क नहीं पड़ता. हैड दिस बीन अदर वे, यदि किसी ह्यूमन की डेथ हो गई होती या उस टाइगर की उस दिन डेथ हो गई होती, लोग इतने जेनरस नहीं है, इतने काइंड नहीं है. सो वो चीजें ना बड़ी स्पॉन्टेनियस होती है. जो मैंने कहा ना, कई बार हमें कहा जाता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें. लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का मैंडेट है, आपका मैंडेट रेस्क्यू करना है. बट भाई पुलिस यदि मुझसे 10 मिनट लेट है, बिकॉज आई बीइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर आई नो माई जंगल, कोई कारण ही नहीं है कि पुलिस पहले पहुंचे और मैं बाद में पहुंचूं. मैं ही पहले पहुंचूंगा और मुझे ही चीजों को हैंडल करने की शुरुआत करनी पड़ेगी. और ये मेरा पहला रेस्क्यू नहीं था. हमने 10 रेस्क्यू को सक्सेसफुल करा और उसके बाद भी अभी भी कर रहे हैं. वो एक एक्सीडेंट था, वो हो गया, बट हमने उससे कुछ सीखा और प्राउडली आई कैन से कि हमने नहीं होने दिया फिर दूसरा ऐसा एक्सीडेंट. वो बड़ी बात है. बिग अचीवमेंट. मैं एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पे. ये जो भीड़ की जो मेंटेलिटी होती है ना, भीड़ बड़ी इंसेन या क्या कहो, बड़ी हार्टलेस भी होती है. जिस परिवार में डेथ हुई थी, शाम को जब बॉडी पीएम होके आई है, शाम 7 बजे पोस्टमार्टम होके, हाँ पोस्टमार्टम होके आई है 7 बजे, उस घर पे फ्यूनरल के लिए कोई नहीं था. उनकी विडो, उनका एक बेटा जो बीमार है, उसका एक बच्चा, उसकी बहन, मैं और मेरे एसडीओ और 3 पुलिस ऑफिसर. उसके सिवा एक भी गांव वाला वहां पे नहीं था. क्यों? अब कोई तमाशा नहीं हो रहा था वहां पे. अच्छा. देयर वाज नो टाइगर, देयर वाज नो फन, देयर वाज नो ड्रामा, देयर वाज नो ड्रामा. डेड बॉडी को उठा के ले जाना तो इट्स ऑल टैक्सिंग. और रात के समय फिर आएंगे, फिर फ्यूनरल के बाद नहाएंगे कैसे, ठंड की रात है. एंड हेड्स ऑफ टू द फैमिली. पढ़े लिखे लोग हैं वो. और अगले दिन सुबह 4 बजे हमने अपना स्कैनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया. इनके घर में डेथ हुई थी, जैसा हिंदुस्तानी परिवारों में होता है. आसपास के रिश्तेदार आ गए थे. दिसंबर का महीना, ठंड का महीना. हम अंधेरे में ही चले गए थे. पूरी हमारी टीम अंधेरे में पहुंच गई थी.
उजेला हुआ, उजेला होते होते हम पगमार्क्स देखते देखते उस घर तक पहुंचे, फिर से पहुंच गए पिछवाड़े से। वो महिला जिसके पति की कल डेथ हुई है वो मुझे बोले बेटा आ जाओ चाय पी के जाओ। हमने वहाँ चाय पी है एंड अभी मैं बोल भी रहा हूं तो मैं मुझे गूज बम आ रहे हैं कि वो जो भीड़ है ना उसे कोई मतलब नहीं है कि लोग जिसके घर में उसके पिता की डेथ हुई है वो उस किस इमोशन से गुजर रहा है या एज एन फॉरेस्ट ऑफिसर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो तमाशा था। एंड दिस इज सैड पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी आई गेस। सर आप वैसे भी बहुत ज्यादा आई थिंक पीपल्स पर्सन है आप बहुत। हाँ बट पीपल्स पर्सन मतलब आप ऐसा सोचो ना कि हम ये जो जॉब करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ है इस कंट्री का, वो हमें बताता है कि ये हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। आज जो ये सुविधाएं मुझे मिली हुई हैं एज अ डिप्टी डायरेक्टर वो सब इसी देश और इसी जनता और इसी की दी हुई हैं, तो मैं उसको कैसे डिसओन कर सकता हूँ। हम बहुत कुछ कर पाते हैं बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे गाँव के लोग या नागरिक जो जुड़ जाते हैं, और एक दो यदि नहीं जुड़ पाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें भी जोड़ें। मुश्किल टास्क है, कभी तो पूरा होगा। सर आप लोगों से इतना जुड़ते हैं, इतना मिलते हैं, अभी हम आते समय भी ये बात डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब इज मीटिंग न्यू पीपल। यस, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर बिकॉज कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कहेंगे कि नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड, बट आई थिंक वो तो ऑब्वियसली आफ्टर अ वाइल वो नहीं होता होगा। बट मीटिंग न्यू पीपल, व्हाई डज इट सेटिस्फाई यू सो मच? ए एंड बी, दिस इज अ टू पार्टर क्वेश्चन। यस, फर्स्ट इज व्हाई डज इट सेटिस्फाई यू सो मच, व्हाई इज इट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब? एंड सेकंड, अगर आपने कभी किसी इतने लोगों से मिले होंगे, इतने अद्भुत लोगों से मिले होंगे, व्हाट has been your biggest takeaway from a conversation that you've had with somebody? Okay, so when I'm saying meeting new people is one, but meeting good people, मैं हमेशा कहता हूँ कि if one has choice कि मैं गोवा जाऊँ या मैं पेंच घूमने जाऊँ, so depending upon various factor one will choose गोवा और पेंच। बट जो पेंच आएगा ना वो इस माइंडसेट के साथ आएगा कि मैं रिलैक्स करूंगा, and he will come with a lot of positivity. So whenever we get to interact with the tourist, हम बहुत पॉजिटिव माइंड फ्रेम के लोगों के साथ मिलते हैं और वो आपको पॉजिटिव बनाता है। अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, दुनिया में क्या हो रहा है। कभी कोई साइंटिस्ट है, कभी कोई सोशोलॉजिस्ट है, कभी कोई बैंकर है, कभी कोई बिजनेसमैन है, कभी कोई राइटर है। सो पीपल फ्रॉम वैरायटी ऑफ वॉक ऑफ लाइफ दे कम, और दे कम विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड फ्रेम। तो जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हो ना, सो यू लर्न सो मेनी थिंग, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अब आज मैं आपसे मिला तो मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा ये पॉडकास्ट होता कैसे है। मुझे पता था कि पॉडकास्ट क्या होता है, सर बहुत प्रोफेशनली होता है, हम बहुत अनप्रोफेशनल नहीं, बट स्टिल आई एम लर्निंग एंड वी ऑल आर लर्निंग, वी ऑल आर इम्प्रोवाइजिंग आवरसेल्फ। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक वाकया कहना चाहूंगा, एंड अगेन नो हार्श फीलिंग फॉर एनीवन। आई वाज टेलिंग यू ना कि हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। सो एक वर्टिकल टेरिटोरियल हम कहते हैं। सो टेरिटोरियल का मेन काम है जंगलों को प्रोटेक्ट करना अदर देन द वाइल्ड लाइफ एरियाज। तो यहाँ आने के पहले मैं नरसिंहपुर जिले में एक गाड़ावाड़ा जगह है, मैं वहाँ पे था और मेरी मदर मेरे साथ ही रहती हैं। फिर वो भी हम यहाँ आए तो मेरी मदर भी यहाँ आ गई। सो एक दिन द देन फील्ड डायरेक्टर मेरे थे मिस्टर डुंगरियाल, NS डुंगरियाल, 85 बैच के ऑफिसर थे, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, बहुत कुछ हैं वो। तो एक दिन किसी सोशल गैदरिंग में उन्होंने मेरी मदर से पूछा कि आप तो गाड़ावाड़ा में रहती थी, अब यहाँ आ गई, तो आपको यहाँ कैसा लगता है? तो मेरी मदर बोली वो बहुत अच्छा लगता है जंगल में। तो बोले पर बेस्ट क्या है? तो उन्होंने कहा इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई। ये जब गाड़ावाड़ा में था बहुत फाउल लैंग्वेज बोलता था, बिकॉज आप रोज चोर उचक्कों से मिलोगे तो उन्हीं की भाषा बोलोगे कि तूने लकड़ी क्यों काटी, तूने रेत क्यों उठाया, यही घिच करते करते। और यहाँ जब आप एक बहुत इलीट क्लास से मिलोगे तो एक लैंग्वेज आपकी सुधर जाती है। तो इसलिए तो पहला पार्ट तो ये है। और दूसरा, एक किसी टूरिस्ट या एक किसी गेस्ट या एक किसी फ्रेंड का नाम लेना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी, और मैं सोच भी रहा हूँ ना तो बहुत सारे, इतने सारे नाम आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी का नाम लूँगा तो किसी के साथ इनजस्टिस होगा कि यार इसको तो भूल ही गए। बट आप एक दो बता दीजिए। एक दो मैं बताता हूँ, तो दो बताता हूँ मैं। दो लोग, एक है मिस्टर आदित्य जैन। आदित्य जैन साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में। टूरिस्ट के तौर पे ही मुझसे मिले थे। अब मैं उन्हें भैया कहता हूँ, जब मैं उन्हें नाम से बोलूँ या किसी और तरह से बोलूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं तो मुझे भैया बोलो। मुझसे उम्र में कुछ 6-7 साल बड़े होंगे। और एक दिन वो कान्हा में मुझे मिल गए और उन्होंने कहा कि लुक, आई
एम इंडस्ट्रियलिस्ट और मैं कान्हा आते रहता हूँ, बचपन से आ रहा हूँ मैं, और आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन सम और अदर वे. सो मैं चूंकि जानता हूँ कि कैंप में क्या डिफिकल्टीज हैं एंड बच्चों की पढ़ाई का क्या होता है. सो आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो विलेजर्स. और तब से वो लेके अभी तक, दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 2014, और ही ऑलवेज बीन वेरी जेनरस फॉर एवरीथिंग. तो वो जो मैं जो बात बोल रहा था ना, स्टाफ वेलफेयर और वो सारी बातें, तो मुझे लगा कि एक आदमी जो केवल टूरिस्ट जिप्सी में बैठ के आया और गया घूम के, उसने उस चीज को गेज कर लिया. तो व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग दिस, और मैं आपको कहूंगा लोग बहुत जेनरस हैं, हिंदुस्तान के लोग बहुत जेनरस हैं. अभी मैं आपको बता रहा था कोविड के समय हमारा तो सारा स्टाफ जंगल के अंदर रहता है. वंस इन अ वीक वो जाता है अपना ग्रोसरी और राशन वगैरह लाने. जब कोविड में शुरू के दिनों में किसी को अंदाजा नहीं था कि दिस विल बी सो प्रोलॉन्ग्ड, बट मुझे याद है शुरू में जब प्रॉब्लम हुई गाइड और ड्राइवर की, तो तब मेरे चीफ वाइल्ड वार्डन थे मिस्टर राजेश कुमार, उन्होंने कुछ फंड रिलीज करा कि गाइड और ड्राइवर को हम सपोर्ट कर सके. फिर मेरे फॉरेस्ट गार्ड्स का फोन आना चालू हुआ कि साहब हम भी उसी प्रॉब्लम में हैं कि वी डोंट हैव राशन, और गर्मियों का समय फॉरेस्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज फॉरेस्ट फायर हो सकती है, और जो जाएगा उसकी फैमिली वाले वापस नहीं आने देंगे. तो पार्क डायरेक्टर ने सबको मोटिवेट करके अंदर रोक रखा और राशन आपका खत्म हो रहा है. आप यकीन करेंगे हमने 12 अप्रैल को एक कैंपेन शुरू करा फेसबुक पे कि आप सपोर्ट करिए फॉर द ग्रीन सोल्जर्स, और यदि आप पैसा देंगे तो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हम ग्रोसरी खरीदने कहाँ जाएंगे. तो हमने हर पार्क में एक ग्रोसर से बात कर ली और कहा कि आप उस ग्रोसर को पैसा दे दो, हम उसके यहाँ से राशन उठा लेंगे. और हमने हर पार्क की फूड हैबिट के हिसाब से 1000 रुपीज का एक हैम्पर बनाया. 50 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक डोनेशन मिला, और 20 दिनों के भीतर वी कुड गैदर सम 74 लाख रुपीज, जिससे हमने लगभग 7,500 फॉरेस्ट गार्ड्स और गाइड्स और ड्राइवर को राशन प्रोवाइड कर पाए. तो उनसे मैंने आदित्य जैन साहब से ये मैंने सीखा कि हमारे लोगों के लिए करने को बहुत कुछ है, एंड दे आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प. आपको केवल एक उनके पास जाके अपनी बात कहनी है, पहला कदम है. एक और सज्जन का मैं नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर आशीष मेहता है. ही इज न्यूरोसर्जन इन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, और दिस इज इन बॉम्बे. जो लोग आपके व्यूअर्स में कान्हा गए होंगे, कान्हा की एक मूवी है जो शेखर दत्तात्रेय जी ने बनाई थी, एक छोटी सी 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, और उसमें एक नरेशन है एक फॉरेस्ट गार्ड मनुआ कार्तिकेय का, जिसके ऊपर भालुओं ने अटैक किया, और तो उसका पूरा स्कल ओपन हो गया था, और वो अपना स्कल अपने हाथ से ही दबा के लेके आया, और पूरा बॉडी उसका फेस डिफॉर्म हो गया था. डॉक्टर ने उसको कहा कि आप हेलमेट पहन के हमेशा चलोगे, बिकॉज स्कल तो है ही नहीं या बहुत वीक है. सो ये डॉक्टर आशीष मेहता कभी कान्हा घूमने आए 2004 या 5 में. उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट नीडेड, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आई विल ऑपरेट हिम. तो आप भेज दीजिए. दिस वाज years after his injury. This is years after. The injury happened maybe in 2001 or 2, and this particular incident is of 2004 or 5 or maybe 6. So वो फिल्म चलती थी और उसमें मनुआ हेलमेट लगा के दिखता था. सो उन्होंने उससे बात करी और कहा कि आप, तो उन्होंने कहा कि साहब आप ब्रीच कैंडी के डॉक्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड, कभी अफोर्ड ही नहीं कर, नथिंग डूइंग, आप केवल भेज दीजिए, रेस्ट आई टेक केयर. इनफैक्ट आई थिंक उसका ट्रैवल का बिल भी डॉक्टर आशीष मेहता ने पे करा और पूरा उसका ऑपरेशन करा. एंड नाउ मनुआ तो अब रिटायर हो गए होंगे, बट ये किस्सा मुझे मालूम था. मैं कभी डॉक्टर आशीष मेहता से नहीं मिला था. मैं अपने सेकेंड टर्म में कान्हा में था, और मेरी मदर ऑब्वियसली शी इज एन एल्डरली लेडी, उनके स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ. एंड देन डॉक्टर ने कहा कि आप जंगल में रहते हो, सो यू नीड टू कंसल्ट टू सम डॉक्टर. हम अलग अलग जगह कोशिश कर रहे थे, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, न्यूरो सर्जन्स वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं. सो समबडी टोल्ड मी कि आप डॉक्टर आशीष मेहता से क्यों नहीं बात करते हो. सो देन आई कॉल्ड हिम समटाइम इन द इवनिंग 6-7 बजे, और मैंने इंट्रोड्यूस किया कि सर आई एम सो एंड सो. ही सेड कि आप कल आ जाओ. मैंने कहा सर कल? बोले हाँ कल आ जाओ. एंड नेक्स्ट डे आई वॉज देयर एट मुंबई विद माई मदर, और उन्होंने चेकअप करा. उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन होना होगा, आप आ जाइए. ऑपरेशन हुआ एक हॉस्पिटल में, ब्रीच कैंडी में नहीं, इट वाज सम अदर हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल में, विच इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल, बट अगेन द ऑपरेशन एंड अदर स्टफ आर वेरी एक्सपेंसिव. तो जब मैं उसका बिल भरने गया, आई वॉज गेसिंग कि कुछ 3-4-5 लाख रुपए का बिल तो होगा ही. सो द लेडी देयर शी आज में आप करते क्या हो. तो अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा था, ऑपरेशन हो चुका था, लौट के आना. मैंने कहा इसको क्या करते हैं कि अब ये पूछ रही है मैं क्या करता हूँ. एंड ब्रीच दिस सैफी हॉस्पिटल इज वेरी बिग हॉस्पिटल इन मुंबई. सो मैंने कहा आप तो पेमेंट लो. बोले नहीं आप करते क्या हो पहले बताओ. सो आई सेड आई एम अ फॉरेस्ट ऑफिसर. बोले फिर ठीक है. सो मैंने कहा ये क्या बात हुई कि आप बोल रही हो फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है. तो शी सेड कि डॉक्टर ने अपनी फीस वेव ऑफ करी है ऑपरेशन की, एंड ही हैज रिटन ही इज सर्विंग द नेशन
सो आई एम वेविंग ऑफ द फी. सो मुझे पता ही नहीं है कि उनका वो फीस क्या था, बट आई वाज टोल्ड इट मस्ट बी इन लैक्स वो ऑपरेशन का फी. बट जब लगता है कि देखो हम जो काम कर रहे हैं उसको लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, और ये आपको बहुत मॉडेस्ट बनाता है और बताता है कि जो आप कर रहे हो उसको और अच्छे से करो. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर आशीष मेहता एंड ऑल्सो आदित्य जैन साहब कि मुझे अपने ही लोगों से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, अपने ही काम को किस डेडिकेशन के साथ करने की जरूरत है. वो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है शुभंकर, और ये खत्म भी नहीं होगी लिस्ट. लोग जो आते हैं ना वो कुछ सिखा के जाते हैं और कुछ बेहतर बना के जाते हैं, और वही इस जॉब का सबसे बड़ा यूएसपी है कि यू लर्न एवरीथिंग एवरी डे समथिंग न्यू. सर आपने जो इतनी सारी बातें बताई, इसमें जो आपने आखिरी में कहा कि जो लोग आते हैं वो इतनी सारी बातें सिखा के जाते हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही था कि जानवर हमें क्या सिखाते हैं, अगर आप वो बता सके हम जानवरों से क्या सीख सकते हैं. और इसके बाद फिर मैं आपको रिलीव कर दूंगा. आप बहुत देर से मुझे आपने टाइम दे रखा है, और आई एम श्योर हम बातें करने जाएंगे तो शायद रात भर कर सकते हैं. पर every good thing needs to end, so let's end on this note. So देखो, जानवर हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं. शुरुआत हम जैसे मैं टाइगर का ही बोला कि टाइगर इज अ थॉरली जेंटलमैन. हम कह दें टाइगर को हमेशा डिपिक्ट करा के बहुत फेरोशियस है और शेर खान और एंग्री, बट टाइगर इज सो वेल बिहेव कि यदि टाइगर फेरोशियस होता तो आप सोचिए कि भोपाल शहर जैसी जगह जहाँ पे कि करीब 15 से 20 या 20 से भी ज़्यादा टाइगर हैं, आपने कभी कोई इंसिडेंट सुना जहाँ पे कि कोई अटैक हो रहा है या ऐसी कोई चीज़ हो रही है? सो एक तो यही है कि बी अ जेंटलमैन, बी काइंड टू एवरीवन. ये एक बहुत जबरदस्त सी. देन दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे आर वेरी टाइम बाउंड. सो फ्लाइंग स्क्विरल और हॉर्नबिल्स, मतलब आप घड़ी मिला लीजिए अपनी. यदि हॉर्नबिल जो एक नेस्ट बनाई है तो यदि वो 10:03 पे फीडिंग के लिए आएगी तो 10:03 पे ही आएगी. यदि फ्लाइंग स्क्विरल को शाम को 6:30 बजे निकलना है तो आप घड़ी मिला लीजिए, वो 6:30 बजे ही निकलेगा. सो वो चीज हमें लगता है कि उनके पास घड़ी नहीं है और वो 6 के बजाय 8 बजे भी निकले ना तो खाना अपना कर लेंगे, बट दे आर सो पंक्चुअल. तो पंक्चुअलिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं खुद फॉलो करता हूँ और सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, और ये जानवर सिखाते हैं वन्य प्राणी की यू नीड टू बी वेरी ऑर्गेनाइज. दूसरा एक और है कि टाइगर के बारे में आपने बहुत सुना होगा ना कि टाइगर की टेरिटरी होती है और वो टेरिटरी में किसी को आने नहीं देता है और फाइट करता है. मैं आपको पेंच का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं. जो हम ये पॉलीगॉन्स की बात कर रहे थे तो आप दिखेंगे कि मेल टाइगर भी बहुत ओवरलैपिंग टेरिटरी है. तो बिकॉज पेंच इज द प्लेस विच इज हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट प्रे बेस, प्रे डेंसिटी. लगभग 40,000 चीतल है हमारे पास में, और आप इसको कंपेयर करें कान्हा से जिसका एरिया हमारा 3 टाइम्स है, उनके भी 40,000 है. तो प्रे डेंसिटी इज क्वाइट हाई. And because we have very high prey density, so there is abundance of food for tiger, at least those who are in core. 80-90 tigers that are in core. So वो बड़े आराम से दूसरे को अपनी टेरिटरी में आने देते हैं कि भाई मेरे पास खाने का बहुत है. एक टाइगर को हम मानते हैं ऑन एन एवरेज अबाउट 70 to 80 स्पॉटेड डियर के इक्विवेलेंट मीट चाहिए साल भर में. तो आप जस्ट इमेजिन करो 40,000 हैं, यदि 10% भी रेट से वो बढ़ रहे हैं तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. देयर इज अबंडेंस ऑफ फूड. तो आपको इसलिए टाइगर की इन फाइटिंग की खबरें पेंच से नॉर्मली नहीं आती हैं. सो यदि है तो फिर लड़ना क्यों? तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग है. हम सीखते कितना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सिखाना क्या चाहते हैं वो लेस इम्पोर्टेंट है. Sir, thank you so much. Thank you so much for giving me this time with you, for giving me this opportunity to spend in this place with you. It's incredible. आपका कोई feedback होगा मेरे लिए, आपका कोई review होगा मेरे लिए तो please मुझे बताइए. मैं उसको नहीं शुभंकर, रिव्यू तो मैं क्या ही कहूँ. जब ये बात हुई आकांक्षा से और हुआ कि ये पॉडकास्ट करना है तो मैंने जैसे कहा कि मुझे हर वो आदमी टूल नजर आता है जो मेरा कंजर्वेशन का मैसेज थोड़ा आगे तक ले जाए, और आप लोगों के थ्रू हम अपनी कंजर्वेशन की बात, अपने चैलेंजेस, अपने कर्मचारियों के चैलेंजेस एक बड़े प्लेटफॉर्म तक ले जा पाएंगे. तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. कंजर्वेशन जो है ना उसका जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है. केवल कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर या कुछ एनजीओज मिलके अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे. हमें इंडिया का जो कंजर्वेशन चैलेंज है उसके लिए इंडिया के वो जो 130-140 करोड़ जितने भी हैं वो हर आदमी चाहिए अपनी टीम में, तभी हम जो कंजर्वेशन का गोल है. एंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंजर्वेशन केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत गुडी गुडी फीलिंग रखते हैं. हम जो भी कंजर्वेशन कर रहे हैं हम जानते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड. टाइगर हमको चाहिए क्योंकि हमें नदियों में पानी चाहिए, हमें ये पूरा इकोसिस्टम चाहिए, इसीलिए हमको टाइगर चाहिए. तो आई विश
आपके व्यूअर्स में से कुछ लोग थोड़ा सा और ज्यादा ग्रीन हो जाएंगे, थोड़ा सा और ज्यादा कंजर्वेशन सेंट्रिक हो जाएंगे। मुझे अच्छा लगेगा आप जहां भी पोस्ट करेंगे लोग अपने व्यूज दें, और मैं चाहूंगा कि उनमें से ही कुछ बडिंग फॉरेस्ट ऑफिसर हों, उनमें से कुछ बडिंग साइंटिस्ट हों, उनमें से कुछ बडिंग सोशोलॉजिस्ट हों जो इस कंजर्वेशन की फील्ड पे आए। तो आई विल बी रियली थैंकफुल, और हमने और आपने ये जो समय बिताया है कुछ 1-1.5 घंटे का, वो जस्टिफाई हो जाएगा। Thank you. थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्कार। If you learned something new from this episode of the Horsemouth podcast, do rate and review us on Spotify, Instagram, X, or wherever people engage with you the most.